Okay. Anjan ma'am, you can begin. Okay. Welcome everyone. Good evening everyone and accept my namaste as well. On behalf of Kamal, Vandana and Trinity Group of Educational Institutions, I Anjan Vatla, moderator for today's event, welcome you all to this great evening. We have a special person to help us to solve our worries in today's scenario when everyone is concerned about safety or from this pandemic, the dangerous coronavirus. The theme of today's webinar is Immunity Enhancement Through Naturopathy in association with International Naturopathy Organization. Life is what happens when you are busy making other plans. Have you ever thought about it that we have to quarantine ourselves inside our houses for quite a long time, around 80 days or more, worried about ourselves and our loved ones? When you are at home looking after your families and thinking about your friends, you're always worried about their immunity. So, to solve our queries, we have amongst us Dr. D.N. Sharma. I'll request Mr. Harsh Tandon, Vice Chairman, Vandana International School, to welcome Dr. D.N. Sharma. Harsh, sir. Thank you, Anjan ma'am. Welcome, sir. Good evening and welcome to this webinar. We have gathered here today to discuss the theme of immunity enhancement through naturopathy. Is a healthcare system that aims at removing the basic cause of disease through the rational use of elements freely available in nature. We are honored to have amongst us Dr. D.N. Sharma, National Vice President of International Naturopathy Organization. We heartily welcome you, sir. Thank you. International Naturopathy Organization is a non-profit organization dedicated to the promotion of naturopathy through its branches in 24 states and more than 1 lakh active members in India and abroad. Dr. Sharma is truly a stalwart in the field of naturopathy and has been bestowed with National Ayurved Ratan Award. He is currently serving as medical superintendent at Aditya Yog Naturopathy Hospital and Research Institute. Sir has conducted more than 1,000 lectures and seminars in various educational institutions and hospitals. Sir has written various research papers and articles with leading journals. He's also been an expert panelist on various television and radio shows. With great respect, I would request Sir to enlighten us all on the given theme of enhancement of immunity through naturopathy. Welcome, sir. Thank you, Thank you Tandon so ji. much, sir. As per the program, now I'll request DN Sharma sir to start with his speech, and then after that we'll have a questionnaire round, sir. So over to DN Sharma sir. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you. First, first of all, we start our meet day hai, with Om chanting 3 times. Sure, sir. Yes, ready?
Namaste to everybody. First of all, I want to thank Mr. V.P. Tandonji, Chairman, and Principal Mrs. Vandana Tandonji to organize such a needful meet for the parents as well students and staff in this crisis of this Corona 19. So we explain all about Corona as well as COVID-19. So we have to know about the Corona. Means हम कोरोना और कोविड में सबसे पहले डिफरेंस जाने। अभी तक ज्यादातर जितने लोग हैं वो समझते हैं कि कोरोना और कोविड दोनों एक ही चीज है। ऐसा नहीं है। कोरोना एक इन्फेक्शन है, डिसीज नहीं है। ये कॉमन इन्फेक्शन है और ये कहीं भी एक इंडिविजुअल उसमें जाकर के वो लंग्स में चला जाएगा, वो हार्ट में चला जाएगा, वो डाइजेशन सिस्टम में चला जाएगा, वो किडनी में चला जाएगा, देन इट क्रिएट्स कोविड। इसको और हम एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। सबने सुना है अबाउट HIV एंड एड्स। HIV इज इन्फेक्शन, इट्स ए infectious disease not the basic disease. Basic disease is AIDS. HIV से संक्रमित कोई भी व्यक्ति 40 साल तक जीवित रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका ट्रीटमेंट चलेगा। बट अगर उसमें एड्स हो गया तो एड्स की कोई वैक्सीन अभी नहीं है कंप्लीट क्योर की, तो उसकी लाइफ वो 40 साल नहीं होगी, वो 40 मंथ में ही समाप्त हो जाएगी, वो फिनिश हो जाएगा, वही लाइफ उसकी वो हो जाती थी। इसी तरह से है, जितनी रिकवरी है उनके अंदर मैक्सिमम रिकवरी जो आती है दैट इज फ्रॉम कोरोना। इन्फेक्शन जहां तक है, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट आज बिल्कुल पॉसिबल है। और जितना जो ये रेशियो पहले 35 से 38% था, अब वो बढ़कर के नियर अबाउट 50% उसका ठीक होने का, जो उसकी रिकवरी का आ गया है। वो इसी वजह से आ गया कि हम लोग इसके इन्फेक्शन के टाइम पर ही उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं और उसकी रिकवरी हो जाती है। यही बेसिक चीजें कि वो रिकवरी फास्ट रहे और रिकवरी परसेंटेज और बढ़ती जाए, उसी के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम और इस तरह के जितने भी डूज और डोंट जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, वही ज्यादा हेल्पफुल है। और दिस इज द ओनली सिस्टम, नेचुरोपैथी इज द ओनली सिस्टम वेयर वी कैन अडॉप्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स। मतलब बीमारी के आने से पहले भी कुछ चीजें ले सकते हैं जिससे बीमारी नहीं आए। लेकिन दूसरे किसी सिस्टम में, एलोपैथी में है, उसमें ये नहीं कह सकते कि आप ये टैबलेट ले लीजिए, आपको कोरोना नहीं आएगा। बट इन आवर सिस्टम इट कैन। तो उसमें आपने देखा भी होगा, आयुर्वेद का आ गया है, बहुत सारा आयुष क्वाथ आ गया है, बहुत सारे काढ़े आ गए हैं, बहुत सारी चाय आ गई है। ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि हम लोग अगर उसको बिना कोरोना के भी अगर अडॉप्ट करते हैं तो वी कैन सेफ आवरसेल्फ, बचा सकते हैं कि उसको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं आएगा। तो उसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी था, क्योंकि अभी जितने लोगों से मैं बात करता था सब यही कहते थे कोरोना और कोविड वो एक ही चीज है, एक नहीं है। अब इसके अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे सिम्टम्स ना करके सिम्टम्स बड़े लिमिटेड थे। अल्टीमेटली के ड्राई कफ होगा, फीवर आएगा, तेज फीवर होगा,
तो इस तरह के जो है कफ कोल्ड के, और उन्हीं पे इसका जो है स्टार्टिंग में इसको बेस किया गया कि ये जो है सिम्टम्स इसमें जो है आएंगे। बट अभी इटली में, जर्मनी में, इवन जो है अमेरिका में इस तरह के सिम्टम्स जो है वो कम आए। यानी कि जितने डेथ के केसेस थे, डेथ के केसेस में ये सिम्टम्स सिर्फ 20% थे। 80% में ये कोई भी सिम्टम था ही नहीं। तो फिर जो है पता लगा कि इसके सिम्टम्स में कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मेल। आपको जो है कोई भी चीज की स्मेल, गंध आना जो है बंद हो जाएगा। टेस्टलेस, आपको बिल्कुल टेस्ट जो है टंग में किसी तरह का भी कुछ भी रखेंगे उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा। और इवन किडनी फेलियर जो है, जिसका कि हम पहला सिम्टम देखते हैं तो यूरिन के अंदर, उसके अंदर ब्लड जो है वो मिक्स होकर के यूरिन में आना शुरू होगा, तो उसने किडनी पे जो है इफेक्ट कर दिया है। हार्ट सीजर, छोटे बच्चों में जो है उनके मसल्स में स्वेलिंग भी आई है। तो ये हमने देखा कि ये ऐसे सिम्टम्स थे। और इसके साथ साथ जो है इटली के अंदर तो काफी केसेस जो है अभी जो लास्ट उसमें जो है 15 डेज में जो देखने को मिले हैं वो डिसेंट्री, डायरिया, उसमें इंटेस्टाइनल जो है इन्फेक्शन भी आज कोविड का उसका सिम्टम जो है वो माना गया और वो सामने आया। काफी 15 से 17% केसेस जो है इस तरह के भी डेथ केसेस जो हुए उनमें ये इंक्लूड थे। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ ये 2-3 सिम्टम्स ही आज हम लेकर के चलें वही जो है कोरोना है। कोरोना का इन्फेक्शन किसी भी रूप में आ सकता है, वो कहीं भी कन्वर्ट हो सकता है कोविड में। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रहा कि इसमें कोरोना कैसे जो है कोविड बनता है। अब आप लोगों को ये जो है मीडिया से और ये सब, क्योंकि हमारी जो है जितनी भी जेंट्री है और स्टाफ है, मैं समझता हूँ सारा बहुत ही जो है ना लिटरेट और इंटेलिजेंट भी है, तो वो इतना तो पेपर घर में रह करके सब देखते ही रहे होंगे कि सबने देखा कि ये जीवित कोई जो है संक्रमित जो है ऐसा जीवाणु, कीटाणु या जो है वो नहीं है। ये एक बिल्कुल जो है ठोस है, उसके ऊपर कुछ लेयर्स हैं। जब तक वो लेयर्स उसकी जो है डिस्ट्रॉय होकर के वो अंदर से नहीं निकलता, तब तक जो है वो संक्रमण जो है पूरी तरह से जो है कोविड में ट्रांसफर नहीं होता है। तो आज अभी जो आपने देखा होगा टेस्ट के हमारे जो है कुछ मेथड्स हैं, जिसमें हम नाक से जो है सलाइवा जो है लेते हैं, गले का सलाइवा लेते हैं, 2 जगह के सलाइवा जो म्यूकस जो रहता है उसको लेते हैं, उसी को टेस्ट करके हम जानते हैं। यानी कि इसका जो स्टार्टिंग स्टेज इनिशियली अगर कोई भी स्टेज है तो दैट इज फ्रॉम नोस्टल, नेजल और थ्रोट। इसलिए हम लोगों ने इसका जो है बेसिक सिम्टम्स भी उन्हीं पे बेस कर दिए कि उसका गला खराब होगा या उसका इन्फेक्शन होगा तो फीवर आ जाएगा। ये बेसिक एंट्रेंस के वो हैं, जबकि बाद में इसमें ऐड किया गया कंजक्टिवाइटिस भी जो है इसका सिम्टम भी है, और साथ में आंखों में भी ये जो है प्रवेश करता है, आंखों की उससे भी ये एंटर करता है और बॉडी में चला जाता है। तो हम लोग जो है मास्क पहन के और सब करके वो करते हैं, लेकिन आंखों की कोई भी सेफ्टी नहीं कर पाते। और देख भी रहे हैं अभी हम लोगों के, आज की ही अभी न्यूज में देख रहा था नून टाइम में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी हमारे दिल्ली के सीएम जो है उनका टेस्ट रिपोर्ट आनी है, उनका क्या रहेगा। ये सब लोग जो है आज कितना जो है करते हैं, लेकिन ऐसे संक्रमित लोगों के अगर वो डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी तो ये आंख के द्वारा भी अंदर जो है एंटर कर जाता है। हम आंखों पे जिन लोगों को ऑटोमेटिकली चश्मा है वो थोड़ी सेफ्टी उनकी रहती है, लेकिन जनरली जो बेयर आईज हैं, जो जिनको चश्मा नहीं पहनते हैं, कुछ नहीं है, उनको आंख के द्वारा भी ये चला जाता है। तो ये उसके सिम्टम्स हैं। अब इसको हम लोग ये मान करके कि जब इसके अंदर गले में खांसी और बुखार अगर इसका नहीं है और इसके सिम्टम नहीं आते, तो एक और तरीका अभी निकाला गया है जिसके अंदर एक छोटा सा जो है ऑक्सीजन जो है
मेजर करने वाला एक मीटर होता है जिसको SpO2 ये मॉनिटरिंग मीटर होता है। मैं आपको इस पे जो है दिखाऊंगा मोबाइल पे ही, आप सब उस पे निकाल के देखना चाहेंगे इसको। ये फिंगर पे आप जो इसको लगाएंगे तो ये फिंगर पे जो छोटी सी क्लिपिंग नजर आ रही है, इंडेक्स फिंगर पे इसको जो है क्लिप किया है, तो इसमें ये रीडिंग आ जाती है ऊपर। ये आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल जो है शो करेगी, और ऑक्सीजन लेवल जब तक आपका अबाव 97 है तो आप बिल्कुल, कोई भी बुखार आए, कोई भी जो आपको जो है थ्रोट इन्फेक्शन है या कुछ भी है, तो आपको उससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए जब तक ऑक्सीजन लेवल आपका गिरता नहीं है। और अगर आप लोगों ने, किसी ने सुना भी होगा, तो सबसे पहला प्रोग्राम इस पे जो है मैंने दिया था, जो 4 मार्च को इंडिया न्यूज के जो है चैनल से 1 घंटे का प्रोग्राम दिया था। मैंने उस वक्त भी इसका टेस्ट बताया था कि हम लोग जो है ब्रीद इन करके, सांस, गहरा सांस लेकर के अंदर भर लेंगे, अंदर भर के, और उसको अंदर ही, इसको हम बोलते हैं आंतरिक कुंभक, अंदर ही कुंभक लगा के गर्दन उसकी सांस को रोकते हुए नीचे कर देंगे, और नीचे करके उसको रोके रखेंगे से के मिनिमम 35 to 40 सेकेंड्स। उससे ज्यादा रोक सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन मिनिमम अगर इतना रोक पाते हैं, और इतना रोकने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई खांसी नहीं आती, या किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता, या किसी तरह से भी एबनॉर्मलिटी डेवलप नहीं होती है, इट मींस यू आर इन सेफ जोन। दैट इज योर होम टेस्टिंग किट। आप इसको जो है अपने घर में सवेरे उठें और रोज एक बार चेक करते रहें। अगर उसमें कहीं भी कोई जो है कंप्लेंट है, देन जो है यू प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो उसमें जो है फिर दूसरे सिम्टम्स देखिए, उसमें जो है क्या है, कहीं जो है आपको भूख कम तो नहीं हो गई है, कहीं आपको एकदम जो है कोई जो है यूरिन में कोई रेडनेस तो नहीं है, तो दूसरे सिम्टम्स को आप जो है क्रॉस कर सकते हैं आफ्टर फर्स्ट स्टेज जो है टेस्ट। अभी ये सभी ने मान लिया, जबकि मैंने तो ये सबसे पहले बताया था कि कोई भी जो है वायरस जो होता है वो कभी भी जो है, जिनका इम्यून अच्छा है उस पे वो कभी इफेक्ट करता ही नहीं। और देखेंगे, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा जितनी झुग्गियां हमारी होती हैं वो किसी गंदे नाले के आसपास होती है, वो वहीं पे जो है पानी खुले में रखते हैं पीने वाला भी, वहीं पे वो खाना बनाते हैं, वहीं पे वो रहते हैं, सब कुछ जो है काम उनका उसी के पास में होता है, और वो हम लोगों से कम जो है इन्फेक्टेड या इन्फेक्टिव डिसीज जो है उनको कम आती है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि उनका इम्यून उन्हीं कीड़ों में, उन्हीं चीजों में रहते रहते वो उनको फेस करने की ताकत जो है रखता है। हम लोग जो है आज रोजाना आरओ का पानी पिएंगे, बॉटल का पिएंगे, अगर कभी हमें एक दिन जो है किसी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां हमें हैंडपंप का दूसरा पानी पीना पड़ेगा, तो हमारा इमीडिएट या तो गला खराब हो जाएगा, या एकदम डिसेंट्री हो जाएगी, या कुछ भी जो है कॉम्प्लिकेशन जो है कहीं भी आ जाएगा, और हम उसको जो है इजीली जो है, एक बहाना हमारे पास होता है कि हमने आज पानी बाहर का जो है ले लिया, इस कारण से ये हो गया। इट मींस आपने अपना इम्यून पर्टिकुलर चीजों पे बेस्ड कर दिया, अगर वो कभी भी आप ब्रेक करेंगे तो उसका जो है इम्यून पे फर्क आएगा। इसका एक एग्जांपल हम लोग जो है देते हैं, आपने देखा होगा कुछ स्कूल्स जो लंच प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे कई बार कुछ जहरीली जो है कोई भी आइटम जो है उसमें चली जाती है, और पॉइजनस जो है फूड तैयार हो जाता है, और उसमें देखते हैं कि वो 300 बच्चे अगर जो है वो सब फूड खाते हैं, तो उसमें से 20 लोग जो है 20 बच्चे मर जाते हैं, 50 को कुछ थोड़ा उल्टी और इस तरह का जो है डायरिया, डिसेंट्री होगा, और उनको जो है शाम तक जो है छुट्टी दे दी जाती है, और 150 लोगों को कुछ भी नहीं होता है। फूड वही पॉइजनस था, सबने जो है खाया, लेकिन कुछ लोग, कुछ बच्चे जो है उसमें क्यों मरे, कुछ को जो है उल्टी सिर्फ क्यों आई, कुछ को कुछ भी क्यों नहीं हुआ। दैट इज द डिफरेंस, जिसमें के हम कह सकते हैं कि यही वो इम्यून है जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये इम्यून जो है 1 घंटे में या 1 दिन में कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता,
लेकिन 1 घंटे में इम्यून कमजोर हो सकता है। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको कोई जो है अस्थमेटिक कंडीशन है, कोई भी जो है ब्रोंकाइटिस है, या पहले से ही जो है कफ कोल्ड चल रहा है, या फीवर जो है, क्योंकि इन दिनों आपने देखा होगा जनरली जो है ये बुखार आता ही जो वायरल होता है, क्योंकि एटलीस्ट कोई भी मेडिसिन लें आप तब भी वो बीच बीच में ब्रेक करके 2-2, 3-3 घंटे जो है वो आपको रिलैक्स करके रिपीटेडली आता है। वो 7 से 8 दिन इसी तरह चलता है, उसके बाद उससे आपको छुट्टी मिलती है। तो अभी आपको ये उसी तरह से झुग्गी वालों की तरह से अब आपको अपने को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना अभी इतना जल्दी हम लोगों से जो है छुट्टी करने वाला नहीं है। हम इसको रोजाना नमस्ते कोरोना करेंगे तो ही इसमें जो है इसको जीत पाएंगे। अगर कोरोना से डर करके कि ये इतनी महामारी फैलेगी और इसका क्या होगा, तो ये उसी तरह से होगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 1 साल पहले एक रिसर्च आई थी चाइना से और अमेरिका में पब्लिश भी हुई थी वो, जिसके अंदर कहा था कि उन्होंने जो है किसी भी जो प्रिजनर्स होते हैं उनको, जिनको इसका जो है मृत्यु दंड दिया जाता है, तो उनको मृत्यु दंड में उन्होंने फांसी की बजाय परमिशन लेकर के कहा कि हम इनको 3 लोगों को सांप से काटने के बाद इनकी डेथ जो है कराएंगे, ये हमें परमिशन दी जाए। वो जो है परमिशन उनको मिल गई। 3 महीने पहले जिस सांप से उनको कटवाना था उसकी एक वीडियो जो है, उनको तीनों जो है 3 जो है कैदियों को जो है उनमें से एक को ट्रायल के लिए लिया, तो एक को वो दिखाई उसको 2 घंटे के लिए कि जैसे ही ये जो है सांप काटेगा, सांप काटने के बाद आपका ये जो है इस तरह से नीलापन जो है चेहरे पे आएगा, फिर वो जो है एकदम फूल जाएगा, उसके बाद वो ब्रश होगा, ब्रश होकर के उसमें से जो है पानी जो है निकलेगा और पूरी बॉडी ब्लूइश होकर के आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये पूरी एक वीडियो बना करके उसको दिखाई गई और 3-4 दिन तक उसको दिखाने के बाद छोड़ दिया गया कि 3 महीने बाद आपको इसी जो है सांप से काट दिया जाएगा। तो उसका 3 महीने जैसे ही कंप्लीट हुए तो उसको एक विंडो के साथ में बैठे हुए जो है उसका जो रूम था उसमें बैठाया, 10-12 लोगों को, जो इसके जो है हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 10-12 लोगों को साथ लिया बाहर गैलरी में और उनकी विंडो से एक स्टिक लेकर के उसमें पिन आगे जो है लगा करके उसको पीछे से प्रिक कर दिया, उसकी बॉडी को प्रिक कर दिया। प्रिक किया तो वो जैसे ही चुभन से एकदम हुआ तो वैसे ही उनको इमीडिएट जो 10-12 लोग थे उन्होंने शोर मचा दिया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, जोर जोर से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। और वो एक बार तो जो है खड़ा हुआ, खड़े होकर के थोड़ी देर बाद उसकी गिर करके डेथ हो गई। तो उसका पोस्टमार्टम कराया गया एंड कॉज वाज स्नेक पॉइजन। तो वहां पे क्वेश्चंस फिर बहुत सारे आए कि सांप ने काटा ही नहीं तो पॉइजन कहां से आया। यही करीब 800 पेज की रिसर्च थी जिसमें उन्होंने बताया पॉइजन किस तरह से डेवलप होता है कि हम जो नेगेटिविटी सोचते रहते हैं, जो देखते रहते हैं, वही चीजें हमारे जो बॉडी एंजाइम्स हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो है उस पर क्वेश्चन आया कि वो जो है पॉइजन तो बहुत दिन पहले से जो है उसमें डेवलप हो रहा था, तो उसके सिम्टम्स पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने जो है उसको जो एक्सप्लेन किया, क्योंकि पॉइजन एक्यूमुलेट होके एक ही जगह इकट्ठा हो रहा था, वो दूसरे जो है ऑर्गन्स में उसके ब्लड के साथ सर्कुलेट नहीं हो रहा था, इसलिए उसके कोई भी जो है सिम्टम्स नहीं आए। लेकिन जैसे ही उसको एकदम जो है वो उसको पिंच किया और उसका जो है आवाज सुनने के मिली, यानी कि उसको सेटबैक जो लगा, वो एकदम जो है उसकी धड़कन, हार्ट बीट इंक्रीज हुई। हार्ट बीट के इंक्रीज होने से वो पड़ा हुआ पॉइजन उस ब्लड के साथ में पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर गया और सभी ऑर्गन्स में जाकर के ऑल ऑर्गन फेलियर होकर के उसकी डेथ हो गई। तो ये हम लोग ऐसा जो है बच्चों के साथ बहुत करते हैं। जितनी मदर्स हैं वो क्या करेंगी, खाना नहीं खा रहे हैं तो उनको जो है डांटेंगी और वो जो है उसको जो है कंपेल करेंगी उसको जो है कुछ भी खिलाने के लिए, वो रोता रहेगा और साथ में खाता रहेगा। तो इस तरह का कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। वो रोते हुए जो भी इंटेक होगा दैट विल बी पॉइजनस, वो कभी भी उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चाहे आप कितनी विटामिन भी अगर उसको जबरदस्ती खिला रहे हैं,
तो वो हेल्पफुल नहीं होगा, वो उसके लिए डेंजरस होगा। तो इसलिए खाते वक्त बच्चे का मूड जितना अच्छा होगा, जितना जो है मोबाइल और टीवी से अलग होगा, जितना बातें कम करते हुए खाना खाएंगे, उतना बच्चे के अंदर इरिटेबिलिटी कम होगी, उतना ही उसके जो है विटामिन बॉडी के हमेशा पूरे रहेंगे। और जब विटामिन बॉडी के पूरे रहेंगे तो उसका इम्यून ऑटोमेटिकली अपने आप बूस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि आज हमारी पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट कोरोना, कि ये बिल्कुल इससे डरना नहीं है। जैसे मैंने वर्ड यूज किया, हम लोग जो है फोन पे भी अभी जो है जो लोग आते हैं या पेशेंट मेरे से बात करते हैं तो मैं सबको एक ही वर्ड यूज करता हूं, नमस्ते कोरोना। यानी कि हम लोगों की भाषा में जैसे कहते हैं, कोई आदमी जो है ज्यादा जो है अगर लड़ने के मूड में होता है तो उसको कहते हैं अच्छा नमस्कार, अब हमें माफ करो। तो इसी तरह से आप कोरोना को नमस्ते करते रहें और उसको अपनी तरफ से दूर भगाते रहें, उससे डरें नहीं बिल्कुल। तो ये जो है सबसे पहले डर आप निकाल दें। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया है कि इसको खोल दिया जाए। और आप ये भी देखेंगे कि जितना ये स्प्रेड होगा उतना वीक हो जाएगा। पहले कुछ इसके एक्सपर्ट्स की जो है स्टेटमेंट आई थी, लेकिन ये सच भी है। अभी जो रिकवरी रेट बढ़ा है ये उसका एग्जाम्पल भी है, क्योंकि इसका जो है जो स्प्रेड का जो वो है पहले 14 दिन था, लेकिन अब भी जो केसेस आ रहे हैं उसमें 30 दिन तक भी वो स्प्रेड हो रहा है। तो आज इसका जो एकदम जो है अगर हम लोग जो है टेक्निकल उसकी लैंग्वेज में अगर टाइम बताएं तो 7 से 11 दिन में ये बॉडी पे जो है असर पूरी तरह से करता है। 7 से पहले अगर उससे इन्फेक्टेड किसी दूसरे आदमी को जो है ये इन्फेक्शन लगता है, ये संक्रमण जो है जाता है, तो वो उतना जो है मजबूत नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका ब्लास्ट होने के बाद का जो है संक्रमण नहीं होगा, वो पैक का ही संक्रमण होगा, जिसको के उसका इम्यून अच्छा होगा तो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब भी अगर सब लोगों का टेस्ट कराएं तो आप देखेंगे अभी भी ये संख्या जो है इन लैक्स जो है वो मिलेगी। इन लैक्स मतलब 2 लैक्स जो है 70,000 तो आज वैसे ही संख्या हो गई है देश की, लेकिन रिकवरी भी उसमें जो है एक जो है 15 की और एक 16 की रिकवरी भी जो है उसके अंदर आई है। वो इसीलिए आई है कि वो उसके पीक पे जाने से पहले अगर जो है किसी को जो है इन्फेक्टेड करता है तो वो उतना पावरफुल नहीं होता है, और वो उतना ही कम पावरफुल एक्स को गया और एक्स से फिर जो है वो जो है 2 दिन में ही वाई को चला गया तो वो और वीक हो जाएगा। तो जितना ये जो है फैलेगा उतना जो है ये वीक होगा। जैसे अभी आप देखते हैं, पहले मलेरिया जो है 20 वर्ष पहले आया और मलेरिया भी इसी तरह से जो है पूरा इसका जो है शोर मचा। आज भी हर साल, जबकि उसकी जो है हमारे पास जो है वैक्सीन भी आ गए, उसका जो है सब कुछ आ गया, ट्रीटमेंट आ गया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी 300 से 400 लोग हर बार हर इस सीजन में, जून के सीजन में मलेरिया से लोगों की डेथ होती है। और उसके अंदर जो है अभी तक भी पूरी तरह मलेरिया को हम खत्म नहीं कर पाए हैं। सिमिलरली कोरोना अभी 2-3 साल बहुत बड़ी संख्या में हर बार आएगा। अभी तो ये अल्टीमेटली जो है सितंबर तक, जुलाई तक तो स्प्रेड होगा और खत्म होते होते सितंबर अक्टूबर जाएगा। तो इतना लंबा जो है जो पीरियड जब रहेगा तो हमें इसके साथ में जीने की आदत हो जाएगी। ये गवर्नमेंट कभी भी इसको कंट्रोल नहीं करेगी। गवर्नमेंट आपके लिए गाइडलाइन बना सकती है, इसको कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं तो केवल आप कर सकते हैं, अपने प्रिकॉशंस लेकर के, कुछ उस तरह के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेकर के। और सिम्टोमेटिक में भी आयुर्वेद को आपने सुना होगा, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट जो आए हैं, जो काढ़े और ये तैयार किए गए हैं और रोजाना पेपर और उनमें जो है वो आता है, तो उसमें यही इसीलिए आ रहा है क्योंकि कुछ डिसीज आपने कभी जो है इसमें मेडिकल उसमें अगर पढ़ते हैं तो बायोलॉजी और उनके जो है बच्चे जो है पढ़ते होंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, MCI बोलते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने यहाँ एक लिस्ट लगा रखी है जिसमें 54 डिसीज हैं।
उसके अंदर जो है ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज जितनी जो है मेटाबॉलिक जो है डिसऑर्डर से रिलेटेड डिसीज हैं वो सारी आती हैं, जिसमें आपका ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, माइग्रेन, ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की ये 54 डिसीज हैं जिसको वो सिस्टम पूरी तरह से क्योर कभी भी नहीं करता है, बट क्या करता है, मैनेजमेंट। वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि उसको मेडिसिन के साथ थ्रू आउट लाइफ मैनेज करते रहेंगे। बट इन्हीं बीमारियों में जब लोग देखते हैं कि ये तो मुझे लाइफ लॉन्ग जो है मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो वो लोग फिर कुछ लोग उसमें से ट्राई करते हैं कि चलिए हम देखते हैं होम्योपैथी या जो है आयुर्वेद या नेचुरोपैथी में शायद हो सकता है वो इस दवाई से मेरा जो है इससे जो है वास्ता जो है कम कर दे। तो वो लोग ट्राई करते हैं, उनमें से कुछ लोग ठीक होते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि ये दूसरे सिस्टम में इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो उन्हीं में से ये अस्थमेटिक और जो है जो ब्रोंकाइटिस है उन्हीं में से आते हैं। आज देखेंगे जिसको ब्रोंकाइटिस है उसको जो है इनहेलर वो सब लेना पड़ता है, लेकिन हम लोग अपने यहाँ इनहेलर, हम लोगों ने आपने जो है पढ़ा होगा, अभी रिसर्च आई थी टर्मरिक पे, हल्दी को जो है सबसे बड़ा एंटीबायोटिक, और उसके साथ में गिलोय लगा दें तो एंटीऑक्सीडेंट भी बन जाता है। ये रिसर्च तो हमारे यहाँ जामनगर जो है यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी है आयुर्वेद की, उसके अंदर रिसर्च किया उन्होंने, उस गिलोय के पाउडर को मक्खियों पे छिड़क दिया, मक्खियों की लाइफ जो है वो डबल हो गई थी। तो ये सारी रिसर्च जो है पहले से आई हुई है, बस यही था कि लोगों को, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि वो एलोपैथी पे जाएं, क्योंकि हर आदमी चाहता है एक दिन में इंजेक्शन या गोली लें और दूसरे दिन हमें दवा नहीं खानी पड़े, तो इसलिए उनकी प्रायोरिटी होती है वो एलोपैथी पे जाएं। तो इसमें अगर आप आते हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आज भी सबसे ज्यादा अगर रिलेवेंट कोई भी जो है थेरेपी है तो वो आयुष की चिकित्सा पद्धतियां हैं, और इसीलिए उनसे रिकवरी का जो अभी रेट आया है, तो उन्हीं पद्धतियों का पेपर में रोजाना, अभी राजस्थान का एक आया है, वहां पे एक संस्था थी और उन्होंने एक काढ़ा बनाया और लाखों जो है उसके पैकेट बना बनाकर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। इवन जो है जो कोविड में एडमिट थे पेशेंट, उनको भी ट्रायल के लिए कुछ 120 पेशेंट्स को लिया गया और उनकी भी रिकवरी का जब रिजल्ट वहां पाया गया, तो अब फर्दर उसको बांटने के लिए, और अब तो गवर्नमेंट ने अपना गाइडलाइंस निकाल करके एडवाइजरी में दे दिया कि ये काढ़ा आप इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स उसमें लेते हुए डेली रूटीन में भी आपने, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इवन वो प्रिकॉशनरी मेजर ये रहेगा कि आपको ये सारे सिम्टम्स आने से बचा देगा। तो Excuse me, Sharma sir, I'll just take 1 minute because there are so many viewers, those who have joined us through Facebook Live. So welcome all viewers, and don't worry, your queries will be answered once sir will finish telling all the all the details he's mentioning. He's guiding us. So after that, your queries will be solved. Thank you so much, Sharma sir. Please continue. Thank you, sir. जी, देन जो है अभी हमारा रहा कि इन दिनों लॉकडाउन में रहे सब लोग, तो लॉकडाउन क्या है उसको समझ रहे। लॉकडाउन वही है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि आप जो है एकदम जो है बोतल का आरओ का पानी पी रहे हैं, अपने इम्यून को आपने रिजर्व कर दिया है, लेकिन अब भी वो जैसे ही बाहर लॉकडाउन से बाहर आएगा और आपको उसी तरह से उन्हीं जीवाणुओं में, उन्हीं के अंदर, अगर आपको झुग्गी में उस नाले के पास ही रह करके खाना भी पड़ेगा, उस नाले के पास ही रह करके आपको जीना भी पड़ेगा, तो एक बार प्रॉब्लम आती है, और उसी प्रॉब्लम का दूसरा नाम है स्प्रेडिंग, जो आज शुरू हो चुकी है कुछ दिनों से, और ये अभी मल्टीप्लाई होने वाली है। जबकि डॉक्टर गुलेरिया ने जो है ये पहले ही कहा था जून एंड तक जो है 5 लाख जो है हमारे यहाँ के जो है संक्रमित लोग जो है हो जाएंगे, और अब तो ये आंकड़ा जो है ये और भी जो है ज्यादा फिगरें 15 जुलाई तक तो ये जो है बहुत ज्यादा है। WHO ने भी जो अभी एस्टिमेट दिया है वो मोर देन 20 लाख तक जो है ना, इसको जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया में वो उतना पहुंचेगा। और ये तो वो होगा जिन लोगों का कुछ जो है टेस्ट होगा या सिम्टम नजर आएंगे या जो एडमिट होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिनमें ये आएगा
और 2-4 दिन कुछ सिम्टम्स रहेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो चले जाएंगे, वो हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं, रिकॉर्ड पे भी नहीं आएंगे, और वो लोग वही होंगे जिनका इम्यून अच्छा होगा। नहीं तो आज इतने जो लेवल पे इतने श्रमिक और वो सारे जो है ये इकट्ठे होके सारा डिस्टेंसिंग और वो सब जो है ब्रेक करते हुए जो घर गए हैं, बसों में लद के गए हैं, ट्रक में भर के गए हैं, ये सारा जो हुआ है उनमें फिर भी आप देखेंगे कि उतना, जैसे कि जो है मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में ही कि आज की ही जो है अपडेट थी कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर पॉजिटिव पाया गया है, ब्रिटेन के जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे। मतलब ऐसे लोग जो इतने प्रिकॉशन लेते हैं, इतना जो है डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, इतनी सब जो है सिक्योरिटी और डाइट मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद वो संक्रमित हुए। यानी कि संक्रमण जो है, अब हम जो है इस संक्रमण के लिए जो कुछ चीजें जो है हम लोग जैसे कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों उसको जो है 2 मीटर का रखते हैं? क्योंकि आप देखते हैं हम लोग अगर किसी को भी जो है बात करते हैं तो मुंह से उसके पार्टिकल्स निकलते हैं। जब भी वो छींटे, आपने देखा होगा, मोबाइल को आप जो है 2 फीट 1.5 फीट तो अपने से दूर करके सामने करके और आप उस पर बोलना शुरू करें तो मोबाइल पे आपको नजर आएंगे वो छींटे जो है वो पार्टिकल्स उस पे जो है गिरते हैं। तो यही कि जो है लोग मिलें, एक दूसरे से बात करें, डिस्कस करें, तो वो पार्टिकल एक दूसरे को सांस के द्वारा या मुंह के द्वारा या उसके फेस पे, आंख पे कहीं टच नहीं करें। इसके लिए आपको जो है मास्क जो है जरूरी किया गया है। और इसमें मास्क जो है बच्चों को कभी भी जो है, कुछ लोगों ने गलती बच्चों को बचाने के लिए 2 साल छोटे बच्चों को भी जो है वो बांधना शुरू कर दिया था, वो भूल करके भी नहीं करें, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन लेवल जितना चाहिए होता है वो उसको कभी नहीं आएगा। बच्चे को और अबाव 65 को हमेशा कोशिश करें कि उनको डिस्टेंसिंग या उनको उस पे जो है रखें, घर में ही रखें उनको, उनकी आइसोलेशन जो है वो मेंटेन करें घर पे ही। उनको मास्क बिल्कुल नहीं देना चाहिए, अदरवाइज उनको ऑक्सीजन कम होगी और कहीं भी कोई ना कोई ऑक्सीजन कमी की वजह से उनका इम्यून और कमजोर हो जाएगा। अब हम बात करें थोड़ा लाइटली उसको भी लें कि लॉकडाउन में हमने क्या खोया या क्या पाया। मीन्स लॉकडाउन में इम्यून को हमने बढ़ाया या घटाया। तो इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो दोनों ही एस्पेक्ट इसमें नजर आएंगे। इम्यून हमने घटाया कहां कि कोई भी खाने का टाइम नहीं था, कोई भी सोने का टाइम नहीं था, कोई वॉक एक्सरसाइज सब चीजें बंद हो गई। तो बॉडी को जो है जो इम्यून बूस्ट करती हैं एक्सरसाइज से जो करते हैं, हमारा जो है रूटीन एक खाने का होता है वो जो है मेंटेन करते हैं। हमने जो है ज्यादातर मीडिया जो है उसको यूज किया। बच्चे घर में रहते थे तो उनको जो है टाइम पास करने के लिए पहले टाइम नहीं मिलता था स्कूल से जो है होमवर्क से और उससे, लेकिन अब टाइम था तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मोबाइल को, मीडिया, टीवी को यूज किया। तो इसमें उन लोगों ने अपने इम्यून को बहुत कमजोर किया है। ऐसे ही नींद का, बच्चे को जो है अभी मेरे पास कुछ केसेस आ रहे हैं, इवन जो है बच्चे ही नहीं, बड़े जो 40 एंड अबाव जो है जिनकी एज है वो लोग भी आए हैं। तो करीब 15 से 20% केसेस डिप्रेशन के बढ़ गए। 15 से 20% केसेस बढ़ गए हैं किसके? वो स्ट्रेस के बढ़ गए या फिर उनके डिप्रेशन के बढ़ गए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस और डिप्रेशन में मेजर रोल होता है विटामिन डी का, और धूप में बिल्कुल आना जाना निकलना, इवन आपकी नेचुरल लाइट में भी जो है वो बंद कर दिया। और आपने पहले भी देखा होगा, अगर स्ट्रेस को आपने कभी स्टडी किया हो तो आपको मालूम है कि जिन स्कूलों में रूम्स जो है वो डे टाइम में भी वो लाइट पे ही चलते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक लाइट पे जो है जिनकी क्लासेस होती हैं, या ऑफिस दिल्ली में जो है जगह की कमी की वजह से वो इतने घुटन भरे ऑफिस होते हैं कि उनमें जो है कोई विंडो होती ही नहीं बाहर के लिए, चारों तरफ बिल्डिंग होती है, एक तरफ एंट्रेंस होती है वो ओपन होती है और उसमें भी लिफ्ट वगैरह जो है वो लगने से ऑफिस वगैरह पूरी तरह बंद हो जाते हैं। वहां पे अंदर आप बैठे हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि बाहर जो है धूप निकली है या बारिश है।
तो इस तरह के ऑफिसेज में काम करने वाले भी हम लोगों के पास आते थे। तो हम लोग ऐसे नाइट ड्यूटी करने वाले बच्चों को या जो उनको यंगस्टर्स को, या जो बच्चे इस तरह के ऑफिसेज में काम करते हैं डे टाइम में भी, जो नेचुरल लाइट में आ ही नहीं पाते हैं, उनका टेस्ट कराते हैं। तो विटामिन D25 जो है ये, या इसका जो है B12, ये दोनों को जब कराते हैं तो उसमें ये डेफिशिएंसी 80% एंड अबाव लोगों में ये पाई जाएगी। और जहां विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी वहां पे कैल्शियम बॉडी में कभी भी पूरा नहीं हो सकता, यानी कि उनकी बोन्स में वीकनेस और जल्दी उनके जो है पेन्स एज वेल। आप देखेंगे कि आप घुटने को इस तरह से जो है अगर हिलाएंगे, मूवमेंट करेंगे उसको, तो घुटने के इस तरह के हिलाने के मूवमेंट से आप नोटिस करेंगे उसमें कट कट की आवाज आती है। ओके सर। हेलो। तो ये उसमें कट कट की आवाज उसमें जो है आ जाती है। तो यही सारी डेफिशिएंसी की इंडिकेशंस हैं। तो आइए हम थोड़ा जो है फोकस डालते हैं कि हमें जो इसमें लॉकडाउन के अंदर रहे तो उसमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स डेवलप हुए हैं जिसको देख करके हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस के लक्षण थे, या स्ट्रेस के सिम्टम्स थे, या फिर जो है वो जो है हमारी और कोई डेफिशिएंसी थी। लेकिन जहां हम इसको जो है लॉकडाउन को सिर्फ एक एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट को देखने की बजाय अगर इसको हम जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखेंगे, जो आज आकर के ये स्प्रेड होना शुरू हुआ है, अगर उस वक्त जिस वक्त ये वायरस जो है अपने फुल स्विंग पे था, अगर उस स्विंग के टाइम पे इसका जो है ये संक्रमण और इन्फेक्शन जो है अगर लोगों को लगता, तो वो जो है कोविड के केसेस जो है आज बहुत ज्यादा होते। और उस वक्त हम लोगों की हॉस्पिटल्स एज वेल एज जो है उसकी फैसिलिटीज और किट्स, इवन सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट, मास्क तक भी हम लोगों के पास तैयारी नहीं थी। तो उस वक्त ये लॉकडाउन जो है करना, वो भी एक जो है बहुत अच्छा रहा, वो भी जरूरी पार्ट था। कुछ लोगों ने जिसको ये सब मालूम था, जो हम लोगों के इस सिस्टम से ऑलरेडी जुड़े हुए थे, तो उन लोगों ने वही एकदम सोने का टाइम परफेक्ट 10 से 11 बजे रखा, उठने का टाइम 5 से 6 बजे का रखा, यानी कि उन्होंने नींद भी पूरी ली, खाना भी जो है बैलेंस डाइट खाई। और उसमें ये एक्सरसाइज कम हो गई है तो उन्होंने डाइट को कहीं भी फ्रूट पे, जूसेस पे, उस पे जो है ज्यादा लाइट जो है डाइट जो है जिसने कर दी, आज वो बिल्कुल किसी तरह भी कहीं भी इससे इफेक्टेड नहीं हुए और कोई भी ऐसे सिम्टम्स उनमें नहीं आए। लेकिन ज्यादातर लोगों ने 1 बजे तक जो है जागते रहे, सवेरे 9 बजे तक सोते रहे। ऐसे सब लोगों का इम्यून आप मान कर चलें, बिना टेस्ट के भी मैं कह सकता हूं कि उनका वीक बहुत कमजोर हो गया है। तो ऐसे लोगों को बाहर निकलने से पहले अपने इम्यून के लिए अब भी हम इसी प्रोग्राम के जो है माध्यम से आप लोगों को जो है बताएंगे कि कौन सी अब वो कुछ दिन डाइट में कैसे चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल टाइम टेबल जो है उसको किस तरह से जो है ठीक करें जिससे बन जाए। अब जिनका इम्यून कमजोर होता है उसके लिए मैं कुछ ऐसे साइंस जो है वो बताऊंगा, साइंस मतलब ऐसे सिम्टम्स जो है जो उसमें आ जाते हैं। स्ट्रेस के लिए आज सबसे पहले जो है आप देखेंगे, या तो आप अक्सर जो है ये चेक करने लग जाएंगे, मैंने जो है कार को लॉक किया कि नहीं किया, मैंने जो है दरवाजे को कुंडी लगाई कि नहीं लगाई, मैंने जो है गैस को जो है बंद किया कि नहीं किया। तो इस तरह जो बार बार उसको चेक करने जाता है तो समझ लें उसमें ये स्ट्रेस के जो है और इवन डिप्रेशन के जो है सारे सिम्टम्स उसमें एंटर कर चुके हैं। आप देखेंगे जो नेल बाइटिंग करते हैं वो पहले से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं किसी, लेकिन इन दिनों जो पहले से कर रहे थे उनमें वो बढ़ जाता है। तो अक्सर जो है उनकी फिंगर जो है वो जो है मुंह के अंदर होती हैं और वो नाखून को मुंह से काटते रहते हैं। नेल बाइटिंग जो भी करेंगे वो जो है उसमें आप निश्चित तौर पे मान के चलें कि वो स्ट्रेस का शिकार हो चुके हैं। ऐसे लोग जिनकी चिन डिवाइड होती है, यहां सेंटर में उसकी डबल चिन होती है, आधी इधर नजर आती है, आधी इधर नजर आती है, या ये नीचे का पोर्शन
ये पोर्शन एक आकर के एक लेयर बन करके फिर नीचे, ये डबल चिन इसको बोलते हैं। डबल चिन जहां भी होगी वो पहले से ही उनकी बाई बर्थ जो इम्यून है वो वीक होगा, और वो छोटी छोटी बात को लेकर के बहुत जल्दी जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट भी होते हैं, बहुत जल्दी नर्वस भी होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये टाइम जो है सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी का है, और वो नमस्ते को भय के रूप में ना लें, वो नमस्ते कोरोना को जो है वो नमस्ते करते हुए ही, मुस्कुराते हुए ही, और उस तरह से उसको जो है फेस करेंगे तो जरूर उससे जो है बच पाएंगे। इसके दूसरे सिम्टम्स में और देख लें, यानी कि जिसको नींद पूरी तरह से अच्छी नहीं आती, नींद में स्वप्न चलते रहते हैं, वो भी नींद जिनकी सॉलिड नहीं है वो भी स्ट्रेस का या फिर वो हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं। जिनको हाइपरटेंशन होता है उनको कभी साउंड स्लीप नहीं आती है, तो उनको भी ये जल्दी स्ट्रेस के उसके जो है वो जो है लक्षण आ जाते हैं, और उनको देखना चाहिए कि वो जो है नींद कैसे अच्छी हो, ये सबसे पहले उसका जो है सिम्टम भी होता है, और सबसे पहले ठीक भी इसको ही करना चाहिए। नींद गहरी हो, साथ में मिनिमम जो है बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे, स्टूडेंट्स जो है 8 घंटे मिनिमम नींद लें, और जो बड़े हैं मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज अगर वो हो गए हैं तो वो भी मिनिमम 6 घंटे की नींद, 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें। तो ऐसे नींद अपने आप में अपने एक मान के चले कि ये अच्छे इम्यून का सबसे जो है अगर बेस्ट जो है कोई भी अगर साइन है तो वो है अच्छी नींद का होना। सेकंड अगर इसको लेते हैं तो पेट साफ होना। पेट साफ होने में अगर किसी को भी पेट साफ नहीं होता तो डेफिनेटली वो इससे जल्दी संक्रमित होगा। हम लोगों के इस सिस्टम में नेचुरोपैथी में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी हैं, नेचुरोपैथी के सिद्धांत, और उसका सेकंड नंबर जो प्रिंसिपल है वो है कि कभी भी कीटाणु जो जीवाणु होते हैं वो संक्रमण या रोग का कारण नहीं होते। रोग का कारण हम लोगों के इस सिस्टम में बताया गया है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन, शरीर के अंदर गंदगी का पड़े रहना, इकट्ठा होना या जमा होना। तो वो टॉक्सिन्स जब गंदगी अंदर रहेगी, यानी कि मल रोज पूरी तरह से आपका क्लीन नहीं होगा, बाउल जो है वो जो है साफ नहीं होंगे, तो वो अंदर रहेगा और सड़ेगा। आप लोगों ने बायोगैस प्लांट जो है वो पढ़ा ही होगा, बच्चों को पढ़ाते भी होंगे कि गोबर को हम पानी में मिला करके एक जो है उसके अंदर बंद कर देते हैं, ऊपर से उसमें ढक्कन लगा देते हैं, और 3 दिन बाद देखते हैं पाइप लगा के उसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रिक जो है यूज करते हैं, घरों में गैस यूज करते हैं, वो सब जो है हम उससे जो है निकाल लेते हैं 3 दिन के अंदर। हम भी वही करते हैं। अगर हमारा मोशन जो है क्लियर नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा, तो हम खा रहे हैं, खाने के साथ में जो है ड्रिंक भी ले रहे हैं, यानी कि गोबर को जिस तरह से जो है पानी मिला के घोल के जो है डाला जाता है उसको कर देते हैं, और ऊपर से उसका सेकंड टाइम का जो है डिनर लेकर के फिर नेक्स्ट डे उसका ब्रेकफास्ट लेकर के उसको ढक भी देते हैं। तो वही गैस्ट्रिक जो है आप अपने अंदर पेट के अंदर तैयार कर लेते हैं, और उसी से आपको जो है एसिडिटी, इंडाइजेशन, और उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको जो है एक बहुत भयंकर जो है एसिडिटी उसमें बनना शुरू हो जाती है। और अपोलो की रिपोर्ट में आप लोगों को दूं तो अपोलो में रात के 12 बजे से 4 बजे के बीच में जितने हार्ट के सिम्टम्स को लेकर के इमरजेंसी में एडमिट होते हैं, 12 बजे रात से लेके 4 बजे के बीच में जितने पेशेंट आते हैं 65% ऑफ देम वर नॉट रिलेटेड टू हार्ट डिजीज। वो सिर्फ जो है एसिडिटी के कारण हार्ट पे प्रेशर आता है, और उसी तरह से ईसीजी भी खराब हो जाती है, और वो सारे सिम्टम्स उसके लेफ्ट हैंड पे पेन भी आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड पे उसको जो है उसी तरह की सारी चीजें है वो जो है सिम्टम्स नजर आएंगे, उनको घबराहट भी होगी। और इस तरह को जो है तो आप देखेंगे कि अगर कहीं पे डॉक्टर वहां किसी को जो है चीट करना चाहे तो उसके पास पूरा समय होता है कि वो उनको लेकर के अगले दिन सारे टेस्ट करते हैं,
और उसमें 50,000 रुपए का आपका बिल इसी बात के लिए होता है, जबकि आपको बाद में पता चलता है इट वाज ओनली ड्यू टू एसिडिटी। तो एसिडिटी एक अपने आप में ऐसा रोग है, उसी एसिडिटी के कारण आपको जो है स्टोन जो है बन सकता है गॉल ब्लैडर में, उसी एसिडिटी के कारण आपको जो है इंडाइजेशन होगा, जिससे जो ग्लूकोज बनता है लीवर से वो ग्लूकोज आपको नहीं जाएगा और आपकी पिंडलियों में जरा सा भी चलने से या उससे जो है हमेशा दर्द या थकान हमेशा बनी रहेगी। तो ऐसे लोग जिनकी पिंडलियों में जल्दी थकान होती है, दर्द रहता है, उनका इंडाइजेशन जो है, उनका डाइजेशन कभी भी अच्छा नहीं होता, वो इंडाइजेशन के शिकार होते हैं। और जब तक इंडाइजेशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि उनके कोई भी विटामिन्स और जो है मिनरल्स कभी भी बॉडी में पूरे नहीं होंगे। आप देखेंगे घर में जो है 5 लोग हैं, 5 लोगों में जो है वही खाना बनता है, वही उसमें जो है सब चीजें जो है इंग्रेडिएंट सारे वही होते हैं, सब खाते हैं, 3 को जो है उसमें जो है विटामिन कंप्लीट होते हैं, 2 को नहीं होते। विटामिन तो उन्होंने भी लिए हैं, वही फूड लिया है, फिर उनके जो है क्यों शॉर्ट रहे? दैट इज ड्यू टू इंडाइजेशन, कि वो उस खाने में से उस विटामिन को लीवर ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया, बॉडी को जो है वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प नहीं की। तो इसी तरह आज की डेट में हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट लेंगे या तो अगर जो है कैल्शियम डाइजेस्ट होता तो आपके खाने से भी हो जाता, अगर जो है कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर रही है बॉडी, आप ऊपर से भी लेंगे तो क्या होगा? आंत में पड़ा रहेगा, इंटेस्टाइन में जो है जाकर के रुक जाएगा। वहां से जो है अगर आपने एक्सेसिव ले लिया तो किडनी में जाकर के स्टोन फॉर्मेशन कर देगा। अगर किडनी में नहीं गया, वो ब्लड के साथ मिलकर के जो है चला गया ब्लड में, तो वहां जाकर के आपके जॉइंट्स पे वो डीजेनरेटिव जो है उसके पार्टिकल्स जमने शुरू हो जाएंगे और आपको बोन्स की डिसीज हो जाएगी। तो ये नहीं है, आपकी बॉडी अगर उसको जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो आपको एब्जॉर्प्शन के जो है वो सारे स्टेप अडॉप्ट करने पड़ेंगे, न कि सप्लीमेंट इंक्रीज करेंगे। यही है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमेशा कैल्शियम की टेंडेंसी क्लोटिंग होती है, तो अगर वो जो है कैल्शियम खून में बढ़ जाएगा तो ब्लड के अंदर क्लोटिंग टेंडेंसी हो जाएगी और ब्रेन हेमरेज, और ये सारा जो है आपने देखा होगा, बहुत बच्चे जो जिम में जाते हैं वो मसल्स को जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतना ज्यादा प्रोटीन और वो सारा कैल्शियम ले लेते हैं कि वो पूरा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो एक्सेस होकर के मेरे पास अभी 1.5 साल के अंदर करीब 22 से 23 जो है ऐसे केसेस आए जो इन बिटवीन 20 टू 28 ईयर्स एज में उनको जो है ब्रेन हेमरेज हो गया। और उनकी हिस्ट्री जब उनको ली गई तो वही कि उन लोगों ने बगैर किसी, अभी इसलिए गवर्नमेंट को जो है ये इसमें जो है एक लॉ इनेक्ट करना पड़ा, लॉ उसका बनाना पड़ा कि कोई भी जो है आज जो ऑपरेटर हैं जिम के, वो कभी भी डाइट को प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। ये उसके बाद ही जो है इन लोगों को लगाना पड़ा। तो आज हम कोई भी चीज अनाप शनाप, डॉक्टर लिखता है कि आप कैल्शियम जो है 15 दिन खा लीजिए, आपको लगता है नहीं डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर ने 15 दिन लिखा है, मैं तो 1.5 महीना इसको लेती रहूंगी तो शायद मेरी हड्डियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है, जितना जरूरत है और जितनी हो कैल्शियम भी। लेकिन इसी में अगर हम जो है नेचुरल रूप में कैल्शियम अगर हम लेते हैं तो वो नेचुरल अगर एक्सेस चला भी गया तो वो आपके जो है हमेशा उसके जो है रफेज, जैसे जो खाना खाते हैं और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है जो बचता है वो उसके साथ मिलके बाहर चला जाएगा, वो बॉडी में इकट्ठा नहीं पड़ा रहेगा और वो आपको हार्मफुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के जिसमें हम लोग तिल लेते हैं, सफेद तिल को 1 चम्मच तिल को जो है आप भिगो करके और रात भर रख दें और सवेरे उसको ग्राइंड करके उसी मिल्क की जो है अगर चाय बना करके आप लेते हैं तो इसमें एक्सीलेंट जो है कैल्शियम आपको मिलेगा। कड़ी पत्ता हम लोग जो है यूज करते हैं, कड़ी पत्ते में जो है आपको एक दिन में जो है अगर आप चटनी लेकर के उसको यूज करते हैं या उसको पीस करके रोटी में डाल करके पराठा बनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कैल्शियम उन्हीं से जो है मेंटेन हो करके पूरा होना शुरू हो जाएगा। इससे अगर आपको जो है ये आपका डाइजेशन अगर ठीक है, डाइजेशन को ठीक करने के बाद में यही सप्लीमेंट आपके मोर देन सफिशिएंट जो है बॉडी में रहेंगे, जो कभी भी डेफिशिएंसी उसकी नहीं आने देंगे। तो हमने सबसे पहले सिम्टम्स बताए कि आपको जो है
इस तरह के जो है अगर नाखून आपके जल्दी जल्दी टूटते हैं, नाखून जो इस तरह उंगलियों को हम हाथ से ही कई बार नाखून इस तरह से तोड़ते रहते हैं, तो जिनके नाखून ये इजीली टूट जाते हैं उनका भी ये साइन है कि वो उसके जो है कैल्शियम बॉडी का कम हो गया है, इसलिए नाखून वो टूटना शुरू हो गए हैं। बहुत छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि उनके जो है नाखूनों पे व्हाइट पैच आ जाते हैं, तो व्हाइट पैच जो है वो भी आपके इम्यून को उसको जो है यानी कि उनकी बॉडी में भी उसके अंदर उनके न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स वो कम हो गए हैं। किसी बच्चे को भी जिसको देखेंगे वो नाखून के ऊपर इस तरह से एक डॉट डॉट टाइप जो है व्हाइट पैचेस जो है जिसको भी मिलते हैं, तो आप मान के चल लें जिस बच्चे के व्हाइट पैचेज हैं उसके विटामिन्स और मिनरल्स सबके सब जो है बहुत पुअर हैं और उसका इम्यून बहुत कमजोर होगा, बहुत जल्दी इंफेक्शन उसको जो है आएगा। हम लोगों ने इसमें जो है बहुत वो देखा है, बहुत बच्चों को आपने देखा होगा या फेस पे या बड़ों में भी व्हाइट जो है पैच आ जाते हैं। व्हाइट पैच में ये दो तरह के, एक तो जिनको कैल्शियम कम होता है तो उसको भी व्हाइट पैच आते हैं, और लेकिन व्हाइट पैच के साथ में उसको जो है अगर आवाज करती है बोन्स तो कैल्शियम की कमी है, ये क्रॉस करना है। दूसरा इसका एक और बड़ा टेस्ट है कि जिन लोगों का मोशन, अगर आप इंडियन स्पीड पे जो है फ्रेश होने जाते हैं और वहां पे क्लियर करते हैं, अगर मोशन आपका जो है डब्बे से पानी डालने से स्टिकी रहता है, चिपकता है, तो चिपकने वाले मोशन जिनका आते हैं उनकी बोन्स चाहे वो 25 साल की एज हो तब भी उनकी बोन्स कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि वो चिपकने वाला जो मटेरियल जो है आपके स्टूल में जो बाहर निकल रहा है वही वो ग्रीस है जो जॉइंट्स में जा करके उनको आवाज आने से रोकता है और उनको मजबूत जो है बनाता है। अगर वो बाहर निकलेगा वो म्यूकस के थ्रू, इसी को एमोबाइसिस बोलते हैं, जिसका कोई सिम्टम दूसरा और नहीं पता चलता, वो जाता है लेकिन हमारी बॉडी में बोन्स में वीकनेस होगी लेकिन उसका सिम्टम दूसरा नजर नहीं आएगा। आप देखेंगे कि आंखों में जो है अगर इचिंग होती है, जीभ जो है वो आपकी इतनी मोटी है कि उसको बाहर निकालें तो आपके साइडों में, दोनों तरफ साइड में अगर दांत के निशान दिखाई देते हैं तो आपका लीवर फैटी है, और लीवर फैटी है वहां इंडाइजेशन होगा, ओबेसिटी होगी। आप कितना ही भी खाना, एक चपाती भी अगर खाएंगे और आप कहते हैं कि 1 इंच भी कम नहीं होता है, तो वो यही कारण होता है कि जिनका लीवर फैटी होगा, स्लगिश होगा, वो फैट को डिजोल्व नहीं कर पाएगा और वो सबसे पहले लीवर पे ही जमता है और उसके बाद लीवर के पास का जो एरिया होता है उस पर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और फैट अपने आप में आपकी सभी बीमारियों के लिए अगेन एक जो है इम्यून को वीक करने वाला वो साइन है और उसका सिम्टम है। तो ये इम्यून पे हम जितना भी जाएं, इम्यून जो है किसका कमजोर और हो सकता है, बार बार जो है कफ कोल्ड जल्दी आना। और इसमें हम लोगों ने एक और, इसमें इतने दिन की प्रैक्टिस में हम लोगों ने नोटिस किया है कि ये जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 यानी कि सेकंड जो है उस पे होती है, वो जो है डेट ऑफ बर्थ 2nd और 7th, ये इन टोटल भी और इंडिविजुअल फिगर में भी, 2nd मींस 2nd, 11, 20 और 29, ये सब डेट ऑफ बर्थ वालों को आपको जो है अर्ली ग्रेइंग होगी और उसमें आपको जो है कफ कोल्ड की टेंडेंसी, चाहे वो गला जल्दी खराब होता है, चाहे वो खांसी आती है, किसी भी रूप में आएगा, लेकिन कफ से रिलेटेड डिसीज उसको बनी रहेगी। क्योंकि इन राशियों को हम जल तत्व की राशि मानते हैं, 2 और 7 दोनों जो है चंद्रमा की राशियां हैं। और आपने देखा भी होगा, ये पढ़ा भी होगा कि जो है एकादशी के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, इसलिए उस दिन हमारा डाइजेशन बहुत पुअर होता है और एकादशी का व्रत उसी को लेके बनाया गया है कि उस दिन डाइजेशन पुअर है तो हम उस दिन फास्टिंग करें, जूस लें, सॉलिड डाइट ना लें तो हम हेल्दी रहें। तो अभी आप जो है बहुत सारे इसके सिम्टम्स तो जो है बहुत सारे हैं, आंखों में ड्राइनेस हो सकता है और इसके अंदर दूसरे भी जो है, और B12 भी अगर किसी का कम आता है तो उसको जो है बहुत जल्दी स्ट्रेस होता है और पूरे के पूरे सारे सिम्टम्स, चाहे वो बोन के हों, चाहे कैल्शियम कम के हों, B12 अपने आप में एक बहुत जरूरी है। और B12 के लिए
अक्सर जो है जो लोग नॉन वेज या मछली और ये सब उसका जो है अपने खाने में जो है प्रयोग करते हैं, उनको फिर भी मिलता है। लेकिन हम लोगों वेजिटेरियन में एक ही चीज होती है जो वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन मतलब मछली नहीं खाते हैं क्योंकि ये उसी में होता है, तो उनके लिए बचता है आपका जो है या तो हमारे पास ब्रोकली होता है या मशरूम होता है या फिर जो है उसको विटामिन सी भरपूर जो है वो लेंगे। तो यही आइटम इस तरह के रहते हैं जिसमें मौसमी है, विटामिन सी में हरी मिर्च है और शिमला मिर्च है। ये सब चीजों को जो है जब आप लेंगे तो ही उसमें जो है B12 कंप्लीट होगा, अदरवाइज आप जो है मेमोरी पे इफेक्टेड हो जाए। अब भी आप देखेंगे बहुत से केसेस तो अभी भी आए हैं कि इस लॉकडाउन के अंदर उन लोगों की मेमोरी पे जो है फर्क आ गया है, उन लोगों की जो है जितनी जो है एक अच्छी जो है वर्किंग जो है स्टेमिना था, स्टेमिना वीक हो गया है। क्यों? क्योंकि यूजुअली उन लोगों का उतना चलना फिरना वो सब जो है नहीं रहा। तो इस वक्त हम बाहर निकले तो हम अपने इम्यून के लिए सबसे पहले डाइट मैनेजमेंट करें कि कोई भी चीजें तली भुनी बिल्कुल ना लें। और एक फार्मूला आप बिल्कुल रखें कि हरी, करी और वरी, तीन चीजों से आपको दूर रहना है। हरी यानी कि जल्दबाजी में ना तो खाना खाएं, फटाफट चलते चलते खाना खाने वाले जो है ऐसे लोग जो है वो उनका डाइजेशन कभी अच्छा नहीं होता और उनको जरा जरा सी बात पे गुस्सा या इरिटेशन आती है जो जल्दी में खाना खाते हैं। तो वो जल्दबाजी में कभी खाना नहीं खाएं। वरी यानी कि अब क्या होगा, 3 महीने के बाद मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है चलेगा नहीं चलेगा, इसको लेकर के बहुत ज्यादा अगर वरी आप हो जाते हैं, चिंता हो जाएगी, उससे बॉडी के सीक्रेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि उस वक्त वो बॉडी के सीक्रेशन हमारे जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। और जब भी सीक्रेशन यानी कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वात पित्त कफ जरूरी पार्ट हैं तीनों, लेकिन जब ये जो है इनबैलेंस जो है इसका जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो असंतुलित हो जाएंगे, कम ज्यादा हो जाएंगे, तो ही वो रोगों का कारण बनते हैं। तो आपके सीक्रेशंस टेंशन से, वरीज से वो अनबैलेंस हो जाते हैं, उनको हमेशा उससे बचना चाहिए। तो सबको आदत डालनी चाहिए कि वो अपने आप को चाहे दिखावे के लिए करें लेकिन अपने आप को प्रसन्न रखें, पॉजिटिव बात करें और वर्तमान में सोचने की आदत डेवलप करें। ना वो भविष्य का 3 महीने 2.5 महीने कैसे निकल गए उसके बारे में सोचें और ना ही वो आने वाले टाइम में सोचेंगे। साथ में आप अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैंने एक टेस्ट बताया घर में, उसी तरह का जो है आप कई चीजें और कर सकते हैं। जैसे 2 जगह के म्यूकस से मैंने बताया कि ये संक्रमित होता है, उस दोनों जगह के म्यूकस को हटाने के लिए आप करेंगे कि एक तो इसका तेल आता है, आज देखेंगे इसमें कि आयुष ने जो है उसको जो है ना तेल को जो है वो किया है जो षटबिंदु के नाम से आता है, लेकिन आयुष ने उसको एक अलग नाम से जो है, तो वो तेल सवेरे शाम नाक में डालेंगे तो नाक कभी ब्लॉक नहीं होगा, नाक में म्यूकस नहीं आएगा। अगर घरेलू आपको करना है तो आप ऑनियन, एक मीडियम साइज का एक ऑनियन ले लेंगे, एक ऑनियन के साथ में 1 टीस्पून उसमें जो है अजवाइन डाल देंगे और 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और इसको बॉईल करके इसकी स्टीम अगर एक बार भी आप ले लेते हैं अर्ली इन दी मॉर्निंग में, तो आपको कभी भी जो म्यूकस नाक में नेजल जो है उस पर जो जमा रहता है, जिस पे वो आकर के जमा होकर के अपने आप को जो है फैलाने के लिए तैयार करता है, वो बिल्कुल नहीं रहेगा, तो वो कभी भी संक्रमित आपको नहीं करेगा। दूसरा, हम जो है गरारे करें। गरारे करने के लिए आपने अभी कितना जो है इसके बारे में सैनिटाइजर का रोजाना जो है आप देखते हैं कि वो जो है किचन में किसी ने गलती से नॉलेज नहीं था वो कर दिया तो आग जो है उसको पकड़ ली है। तो सैनिटाइजर के जो है करने के बाद हम जनरली सैनिटाइज करते हैं, उसी से खाना खाना शुरू करते हैं, वो कितना ज्यादा अंदर जाकर के आपके इम्यून को जो है खराब करता है। या आपके आंखों में लगेगा तो आंखों में इरिटेबिलिटी आएगी, आंखों की इरिटेबिलिटी अगर रहेगी उनमें कंजक्टिवाइटिस जैसे जो है कोई भी सिम्टम या इरिटेटिंग रहेगा तो उसमें जो है कोरोना के अगर पार्टिकल्स जो है आंख पे कहीं भी गए तो वो आंख तो आप बंद कर नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं जिनको जो स्पेक्स नहीं है तो वो कम से कम गूगल्स जो है
जो प्लेन गोगल्स होते हैं वो प्लेन गोगल्स यूज करें, सो दैट के सामने वाले के जो है वो जितने जो है उसके छींटे हैं वो उस पे जाके आंख को संक्रमित ना कर पाए। अब गले के लिए तैयार करें, और इसमें भी मैं बता रहा हूं कि आपको जो है ये अल्कोहल बेस की बजाय आप उसको घर में भी बना सकते हैं। पहले हम पानी, और अभी भी नगर निगम का उसका पानी आता है, वो सारा जो है ये फिटकरी और उससे जो है प्रोसेस होके आता है। तो आप अपने घर में भी थोड़ी जो है आप 3 लीटर पानी में 1 चम्मच जो है फिटकरी पाउडर जो है डाल करके पानी को बॉइल कर लें, उसके अंदर थोड़ा हल्दी और नमक डाल करके अगर आप उसके गरारे कर लेते हैं तो आपको गले में भी जो म्यूकस है वो नहीं जमेगा, यानी कि दोनों रास्ते आपने बंद कर दिए। म्यूकस आपके गले में भी नहीं होगा, म्यूकस आपके नाक में भी नहीं होगा। तो वो जो यहां आकर के करता है वो डेवलप करने वाला स्पॉट आप उसको खत्म कर देंगे। इसको योग के द्वारा भी हम जो है करते हैं। नाक के लिए हम जो है जल नीति करते हैं, जो एक लोटा होता है, एक नाक से जो है उसको फंस के मुंह खोल करके सांस मुंह से लेना शुरू करते हैं, नाक से सांस बंद कर देते हैं, और गर्दन टेढ़ी करके उसको जो है लोटे को लगा करके वो दूसरी तरफ से पानी, उसके अंदर भी पानी गुनगुना होता है, साथ में उसमें 1 चुटकी भर नमक डालते हैं, 1 से 1.5 ग्राम जो है 2 ग्राम तक नमक डाल देते हैं। तो नमक से म्यूकस वो डिजोल्व हो जाता है, और गुनगुना होने के कारण वो उसके साथ में बह करके सारा बाहर निकल जाता है, और फिर हम जो है जो पानी अंदर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। अगर आपने वीक में 2 से 3 बार भी अगर जो है जल नीति का अभ्यास किया तो आपके नाक के थ्रू वो वायरस कभी भी एंटर नहीं करेगा, पनपेगा, तो वहीं पे आपके इम्यून से जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे ही गले में आप जो है इसी नमक और उसमें थोड़ा फिटकरी डाल करके अगर उसके गरारे कर लेते हैं, हल्दी 1 चम्मच उसमें डाल के पानी बॉइल करके गर्म पानी के गरारे करते रहें, यानी कि माउथ वॉश भी अगर करते रहेंगे तो के अंदर के सलाइवा में जो उसको जो है डेवलप होने का जो है जो स्पॉट बनता है वो खत्म हो जाएगा। आपको कोरोना वायरस की कोई भी किसी प्रकार की जो है वो प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। तो आप ये बच सकते हैं। कुछ लोग जो अच्छा अभ्यास कर चुके हैं योग का वो कुंजल भी कर सकते हैं, और नहीं तो नेचुरोपैथी इसमें जो सबसे आगे जो गई है उसका यही है, जैसे मैंने बीच में बताया था कि कभी भी जिन लोगों को जो है कोई भी संक्रमण होता है तो संक्रमण आपकी बॉडी में एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स के कारण, जब टॉक्सिन्स बॉडी में होंगे तो वही जो वायरस है या वही जो आपके जो है संक्रमित जो है करने वाला जो है एलिमेंट है वो उसमें गंदगी में जाएगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, और वो वहां से फट करके अपनी संख्या बढ़ाने में, अपने को मजबूत करने में सक्षम होगा। हमारे आरएनए को इफेक्ट करेगा, आरएनए कमजोर करेगा, और डीएनए जो हमारा एक इम्यून के रूप में जो है हमारे शक्तिशाली जो हमें बाय बर्थ मिलता है उससे लड़ने में अगर वो इतना आरएनए को अपने साथ कमजोर करके जोड़ लेता है तो हमारे डीएनए पे भी उसका इफेक्ट आता है, तब हम इसके कोविड के शिकार होते हैं। तो ऐसे लोग अगर घर में भी एनिमा ले सकते हैं, नीम का, नींबू का, कोई भी गुनगुना पानी लेके एनिमा कर लें, पेट साफ करते रहे, कहीं भी आपका जो है पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो कभी भी आपको कोई वायरस जाके उसको टॉक्सिन्स नहीं मिलेंगे बॉडी में, तो आपको जो है ना तो आपका इम्यून वीक होगा और ना ही कोई इस प्रकार का संक्रमण आएगा। ये है कि कोरोना को आप अपने आप कैसे दूर रख सकते हैं। आज डिस्टेंसिंग, सेफगार्ड, वो सारा आपका एक अलग पॉइंट है, लेकिन उससे पहले आपको अगर मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है तो आपका बॉडी इम्यून अच्छा रहे, उस बॉडी इम्यून को और इस तरह के स्पॉट को अगर हम क्लीन करके रखेंगे तो वो कभी भी डेवलप नहीं होगा। तो ये कोरोना को भगाना आपके हाथ में, और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कोरोना को खुद दूर कर सकते हैं तो आपको उसका डर भी खत्म हो जाएगा और आप मेरी तरह ही हंस करके कहेंगे नमस्ते कोरोना। तो ये हमारे उसके जो है बहुत सारे रहे। अब मैं समझता हूँ क्वेश्चन होंगे तो उसमें हम काढ़ा कौन सा है, किस तरह बनाना है, तो वो क्वेश्चंस के उसमें ही एक्सप्लेन कर देंगे, उसका रेपिटेशन ना हो, तो इसलिए उसको जो है हम सत्र को जो है इसमें और आगे ज्यादा लंबा ना करते हुए ये कोशिश करेंगे कि कुछ चीजें
डूज और डोंट की ओर जो है हम एक दो चीजें बताएं। आपको खाने में क्या नहीं लेना है, यानी कि सबसे पहले 7S, एस फॉर शिमला, 7S को बचना है। कौन से 7S हैं? स्मोक, स्कोच यानी कि शराब, धूम्रपान, साल्ट, शुगर, व्हाइट साल्ट, ये नहीं लेना है। स्ट्रेस, बार बार किसी चीज को सोच करके अपने दिमाग में स्ट्रेस नहीं बनाना है। और ऑलरेडी जिनको डबल चिन या इस तरह के स्ट्रेस के साइन हैं, वो लोग जो है उसके लिए विशेष ध्यान दे करके जो है वो दूर रहेंगे। इस तरह का मन में विचार आए तो फौरन दिमाग को दूसरी तरफ जो है बदल दें और उसको डाइवर्ट कर दें दिमाग को। साथ में थोड़ा मेडिटेशन का सहारा ले लें तो उनको जो है बचने। तो हमारा जो है हुआ स्कॉच, स्ट्रेस, साल्ट और इसके अंदर स्वीट, शुगर स्वीट एक ही है, और सैचुरेटेड फैट जो कि नमकीन वगैरह जो हम चिप्स और ये सब खाते रहते हैं, ये सारा सैचुरेटेड फैट है, क्योंकि अबाव 90 जो है टेम्परेचर, उसमें कढ़ाई में उनका तेल वो जो है सारा दिन पकता रहता है और वही तेल सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट होता है। तो जो नमकीन खाते हैं वो बिल्कुल बंद कर दें। जो पराठा जो है खाते हैं उसका वो पराठा बनाने का स्टाइल अपना चेंज कर दें। पराठे को पहले पूरी तरह से सेक दें, तब तक जो है उस पर घी मक्खन नहीं लगाना है जब तक कि वो पूरी तरह सिक नहीं जाए। सिकने के बाद में हल्का सा लगाएं और उसको पलट करके उतार दें। इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं होगा। पहले ही आपने लगा दिया और वो हाई टेम्परेचर पे जब वो घी जो है तवे पे जलता रहेगा और वो जो है गिर के जो उसमें जो है वो सैचुरेटेड फैट हो जाएगा। टिक्की है वो सवेरे से शाम तक वो उस पे कढ़ाई पे वही तेल रहता है, उसी में ऐड करता रहता है, ये सैचुरेटेड फैट है। अगर वही टिक्की आप घर में अपने यहाँ बना के खाएंगे वो सैचुरेटेड फैट नहीं होगी, क्योंकि वो कम देर में ही उतने हाई टेम्परेचर पे नहीं जाएगी। तो इसलिए इस तरह की ऑयली उनसे बचें, सैचुरेटेड फैट से बचें। और इसमें जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल में बिल्कुल जो घरों में रहे, उन्होंने किसी प्रकार का ना प्राणायाम किया, ना ही उन्होंने कपालभाति की, ना ही उन्होंने जो अनुलोम विलोम किया, कोई भी अभ्यास नहीं किया और उन्होंने अपने आप को जो है इतना बना लिया। अब उनको एकदम घर से निकलना पड़ेगा तो सांस फूलेंगे, घर से थोड़ा सा भी जो है चल करके आएंगे तो जल्दी थकान होगी। अब वो बार बार जो खाते रहे वो जो है पेट पे जो है जितना वेट गेन किया है उस वेट गेन की टेंशन जो है क्रिएट होगी। तो इसलिए 7S को जो है अभी आप बचाएं। जितने भी इस टाइम में ऐसी चीजें जो फ्रिज की हैं, जितनी जो इन दिनों में बड़े मजे और चाव से खाते थे हम आइसक्रीम और फलूदा, उनको अभी आपको जो है इस सीजन में से नो टू आइसक्रीम एंड जो है दिस टाइप ऑफ कोल्ड जो है ड्रिंक्स ऑल्सो, कि कोल्ड ड्रिंक अभी बिल्कुल नहीं लेंगे। और दही को रात में प्रयोग, दही अपने आप में बहुत अच्छा है, यूज करें, लेकिन कभी भी रात में उसको यूज नहीं करना है। एकदम जो चिल्ड फ्रिज का बहुत बच्चों को आदत होती है, बॉटल जो है फ्रिज में से तुरंत निकाली और भागते हुए कहीं से भी आए। और ये भी अवॉइड करें कि अभी एसी जैसे जो है लोग यूज करते हैं, तो पहली बात डायरेक्ट एसी की हवा बॉडी पे नहीं आनी चाहिए। सेकेंडली टेम्परेचर अबाउट 25-26 आपको जो है रखना चाहिए, 24 पे बिल्कुल भी भूल कर उसको ना रखें। ये कुछ सावधानियां जो आपको रूटीन की लाइफ में है। बासी कोई भी खाना गर्म करके नहीं खाना है, कोई भी खाना बासी जो होगा वो नहीं खाना है, क्योंकि उसमें म्यूकस बनेगा। और ऐसे लोग जिनको पहले से हाइपरटेंशन है, जिनको पहले से डायबिटीज है, उनमें उनका इम्यून ऑटोमेटिकली जो काफी दिनों से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, रेगुलर मेडिसिन पे हैं, वो जो है इससे सावधान। हालांकि कुछ पॉजिटिव साइन जो मैं बता रहा था घर में रहने के आए कि लोगों ने बाजार का नहीं खाया, सैचुरेटेड फैट कम लिया और बाहर का जो वातावरण जो हमारा जो है पॉल्यूशन का था उससे बचे, घर का खाना खाया, तो उससे आपने देखा होगा कि डेथ रेट भी जो है कम हुआ। और जो हॉस्पिटल एक एक बेड पे 4-4 लोग इमरजेंसी में पड़े रहते थे, वो जो है इमरजेंसियां जो है पूरे अस्पताल जो है बंद हैं, उसके बावजूद भी कोई इमरजेंसियां ऑलमोस्ट जो है 30% जो है रह गई।
70% इमरजेंसी जो है कम हो गई। साथ में आपने देखा होगा कि जितनी भी दवाइयां बाहर जो है निकलने के चक्कर में, कुछ शॉप के जो है लॉकडाउन होने के चक्कर में आप ला नहीं पाए, तो कई कई दिन जो है बीपी वालों की भी, हार्ट वालों की भी, शुगर वालों की भी उनका गैप हो गया। और उस गैप के बाद भी आप देखेंगे कि जितने भी ये केमिस्ट और ड्रगिस्ट हैं उनकी सेल भी 47% जो है कम हो गई। और उसके बावजूद भी हमारी इमरजेंसी और हेल्थ पहले से बेटर रही। तो कोरोना ने हमें बहुत कुछ आगे के सीखने के लिए, अपनी हेल्थ को जो है क्या जो है होता है, किस तरह से स्वच्छ जिंदगी होती है, क्या पॉल्यूशन से वास्तव में जो है हमारी नदियां गंदी हो रही थी, ये सब उनको प्रैक्टिकल दिखा दिया। ऐसा जीवन का एक्सपीरियंस इतना दे करके इतने सस्ते में शायद कभी मिलने वाला नहीं था। तो नाउ हम जो है क्वेश्चन आंसर को लेंगे। इस पे जो है डिटेल हो गया, और क्वेश्चन आंसर में जो भी इसमें बहुत जो बचा है, जो बेसिक है, जो हम किस तरह से जो है रोजाना के रूटीन के खाने में क्या क्या काढ़ा या कैसा ले सकते हैं, वो क्वेश्चंस जो है हम उसका जो है जवाब देंगे, जो आप लोगों को पता लग जाएगा। नाउ क्वेश्चन आंसर। थैंक यू सो मच सर, आपने जिस तरह से गाइड किया, आई थिंक दैट विल हेल्प एवरीबॉडी टू फॉलो इन रेगुलर रूटीन्स ऑफ लाइफ। और बहुत सारी ऐसी चीजें शायद कॉमन लाइफ में हम उसको ध्यान ही नहीं देते हैं, दैट हाउ वी आर इग्नोरिंग आवर हेल्थ, लेकिन आपने इस तरीके से समझाया, आई थिंक दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू एवरीवन। थैंक्स अ लॉट सर। सर हमारे पास वी हैव अ राउंड ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, एज वी आर लाइव ऑन फेसबुक आल्सो। So first I'll start with the people, those who have joined us through this app. I'll request ma'am to, and please unmute Mansi Bahal ma'am so that she can put up her question. सर मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट सप्लीमेंट्स बूस्ट आवर इम्यूनिटी। आपने बोला काढ़ा वगैरह हम ले सकते हैं, तो सर कोई आप सप्लीमेंट बता सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं? फॉर व्हाट? सर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। हाँ, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो है मैं आपको जो है सबसे पहले डाइट बताता हूँ। डाइट में आप एक चार्ट जो है उसका तैयार कर लें, जिसमें 100 to 200 जो है ग्राम्स मिनिमम जो है हाफ कुक जो है सब्जी जो है, कुक भी खाएं तो, लेकिन 200 ग्राम सब्जी आपको जरूर खानी है डेली। दूसरा, 300 से 300 to 400 ग्राम्स जो है सैलेड, वो आपको जरूर लेना है। 150 से 200 ग्राम फ्रूट्स जो है वो आपको डेली रूटीन की डाइट में इंक्लूड करना ही करना है। और 20 to 25 ग्राम जो है उसमें आपको नट्स जो है, मेवे, वो आपको जरूर इसमें इंक्लूड करना चाहिए। साथ में इसके अंदर जो आयुर्वेद का अभी जो है रिपोर्ट आई है, उसके अंदर जिनको अगर कोई ना कोई डिसीज पहले से रहती है या जल्दी जो है उनको कोई ना कोई जो है इन्फ्लेमेशन जो है हो जाती है, तो वो अश्वगंधा पाउडर शेप में मिलता है, तो उसका 1 टीस्पून पाउडर मिल्क के साथ में और उसमें आधा टीस्पून हल्दी मिला करके वो लेंगे, तो उससे जो है वो जल्दी उनका इम्यून डिस्टर्ब नहीं होगा और बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। इम्यून कभी भी एक दिन में बूस्ट नहीं होता, बट इम्यून की चीजें अगर आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो इमीडिएट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो आपके इम्यून को खराब होने से रोकना शुरू कर देता है। तो आपका इम्यून कम से कम वो आपका सेफ गार्ड होना शुरू हो जाएगा, जिससे कमजोर नहीं होगा तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। सर मैं इसके साथ वही क्वेश्चन ऐड करूंगी जो बहुत सारे हमारे फेसबुक लाइव ऑडियंस का क्वेश्चन है कि इफ द सेम प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय चिल्ड्रन, कि बच्चों का इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों का क्या डाइट होनी चाहिए सो दैट दे शुड हैव गुड इम्यून सिस्टम। एंड नाउअडेज आप देख रहे हैं कि बच्चे दे आर वेरी चूजी, दे डोंट ईट हेल्दी फूड, तो क्या उनका ऐसा डाइट होना चाहिए कि पेरेंट्स उसको ऐड करें सो दैट हैप्पीली बच्चे उसको कंज्यूम कर सके, एक्सेप्ट कर सके? मैडम, हमने बताया था कि इन दिनों जो है बिल्कुल एकदम फ्रेश जो है खुमानी आती है। ओके। बच्चों में सबसे ज्यादा इस वक्त, बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कभी भी जो है इनटेक ऑफ वाटर जो है
वो एसी में रहने के कारण उसका गर्मी में कम करते हैं। और बॉडी के इम्यून को डिस्टर्ब करने वाले जो हमारे फॉरेन मैटर्स जो रहते हैं, टॉक्सिन जो रहते हैं, वो हमारे थ्रू जो है स्वेटिंग और थ्रू यूरिन वो उसी से निकलते हैं। इनटेक ऑफ वाटर कम होगा तो आपकी स्वेटिंग भी नहीं होगी, क्योंकि एसी में रहेंगे हम तो बाहर नहीं जाएंगे, स्वेटिंग नहीं होगी तो वो उससे भी नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा गर्मी में स्वेटिंग के बाद यहाँ पे जो है बगल पे स्वेटिंग आने के बाद एक लेयर व्हाइट कलर की बन जाती है। व्हाइट कलर की लेयर जो होती है वही यूरिक एसिड होता है जो पसीने से निकलता है। अगर वो पसीने से यूरिक एसिड नहीं निकलेगा तो यूरिक एसिड आपके ज्वाइंट्स पे जम जाएगा और आपको जो है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो वो जो है पसीने से निकालने के लिए आपको कुछ देर धूप में जाना बहुत जरूरी है। मेरे पास अभी जो है जितने मैंने बताया कि कम से कम जो है 40 से 45 केसेस जो है डिप्रेशन के और स्ट्रेस के जो आए, हम लोगों ने उनको इमीडिएट जो है सबसे पहला स्टेप यही दिया कि वो जब तक घर में है बच्चे अभी, तब तक उनको जो एकदम राइजिंग सन होता है, 1 घंटे का जो सन है राइजिंग सन, उसको बेयर आईज, मतलब अगर स्पेक्स लगे हैं तो स्पेक्स को रिमूव कर दें और वो आंखों को इस तरह सूरज की तरफ करके बेयर आईज उसको आधा पौने घंटे तक वो उसको देखें। अगर वो उस टाइम पे जो है कुछ कपड़े भी ऊपर से अगर खोल सकते हैं, लेडीज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो अपना कुछ इस तरह का जो है वो बना सकते हैं, अदरवाइज वो सिर्फ जो है कुछ बटन्स और इस तरह का खोल करके हाफ स्लीव्स और इस तरह पहन करके बैठेंगे तो उनमें कभी भी जो है B12 की कमी नहीं होगी। और B12 के लिए जैसे मैंने डाइट का बताया था कि आप जो है उसके अंदर ब्रोकली, उसको जो है चाहे सूप के रूप में ले लें, टमाटर जो है उसमें अच्छा लें, साथ में उसके अंदर मुनक्का, जो इसमें काढ़े में भी हम बताएंगे, मुनक्का जो है ज्यादा से ज्यादा लें। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा वो है आप इसमें अंकुरित स्टार्ट कर दें। अंकुरित में अपने आप में प्रोटीन भी है, अंकुरित में ही आपके विटामिन ए से लेके सी तक सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। और जिनका पेट साफ नहीं होता है वो बच्चे दूध में थोड़ा सा अगर जो है अंजीर, आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट में आता है, गोल टाइप का रहता है, जो बीच में जो है धागे के अंदर जो है उसमें जो है वो बहुत सारे जो है होते हैं, उसका एक पीस अगर बच्चा है तो एक और बड़े हैं तो 2 पीस लेके या तो दूध के साथ जो है रात को लेके सो जाएं, अदरवाइज उसको रात को पानी में भिगो करके सवेरे चबा के ऊपर से वो पानी पी लेंगे तो उससे उनका इंडाइजेशन भी ठीक हो जाएगा, लीवर को भी हेल्दी रखेंगे और आपके कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेंगे। अगर और भी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का उनको डर है तो उसमें मुनक्का भी 5 से 6 मुनक्का भी रात में भिगो दें और वो चबा लें, और तो देखेंगे आप 2-3 दिन के बाद नॉर्मल आपका पेट साफ होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे तो पेट बहुत अच्छा साफ होता है, यानी कि जैसे ही नींद खुलती है, नींद खुलने के बाद अगर फैमिली मेंबर दूसरा कोई जो है वहां पे अगर टॉयलेट में है और एक ही टॉयलेट है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते, वो दरवाजा पीटना शुरू कर देते हैं। जिनको इस तरह का टॉयलेट आता है वो भी बीमार होते हैं, उनका भी डाइजेशन हमेशा पुअर होता है और वो एमोबाइसिस होते हैं। और उसका दूसरा सिम्टम एक और मिलेगा कि वो जब भी खाना खाएंगे उनको 15-20 मिनट से 30 मिनट के बीच में एक बार फिर लगेगा मुझे फ्रेश होने जाना चाहिए। जाते नहीं है, रोक लेते हैं, लेकिन ऐसी फीलिंग आएगी तो ये भी हमारा एमोबाइसिस का जो है साइन है, जो उसको जो है सुधारना चाहिए। नहीं तो उसको सारी वीकनेस बोन से लेकर के इवन इसके स्टेमिना और आपका जो है ये इम्यून दोनों को वो कमजोर रखेगा। आपको जो है एकदम लगेगा मेरा पेट बहुत अच्छा साफ हो रहा है, लेकिन वो इम्यून को कमजोर कर रहा है। Thank you, sir. Thank you so much. Now we have Preeti Das, ma'am. Ma'am, please unmute Preeti Das, ma'am. She'll put up her question. Good evening, sir. Very good evening. Yes, Preeti Das जो है how can we improve our immune system? हाँ, उसी पे हमने बताया है
अब आपने फिर भी क्वेश्चन किया तो इसका मतलब आपका जो है या तो वॉइस क्लियर नहीं है या आपने अभी जो है बाद में ज्वाइन किया है। लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ और ऐड करते हुए बता देता हूं। जैसे अभी मैडम ने जो है पूछा था बच्चों के लिए, जो बच्चे जो है बहुत सारे जो है रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके लिए हम एक पाउडर तैयार कर सकते हैं जिसमें जो है हम पंपकिन के सीड्स ले सकते हैं, तरबूज के बीज की गिरी ले सकते हैं, और उसी के अंदर जो है हम सूरजमुखी के बीज ले सकते हैं, खरबूजे के बीज ले सकते हैं, उसी में अश्वगंधा भी डाल सकते हैं, थोड़ा जो है भुना हुआ जीरा ले सकते हैं, उसके अंदर नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। तो ये सारा मिला के एक पाउडर बना दे मिश्री डाल करके, और वो मिश्री वाला पाउडर वो टेस्टी भी होगा, और इसको एक एक चम्मच बच्चे को अगर आप दे देते हैं तो इसमें इम्यून एज वेल एज जो आपकी जो है एक्यूट डिसीज होती हैं जो एकदम तुरंत आती हैं, इसके अंदर आप देखेंगे जो ये बड़े भी अगर लेते हैं तो ऐसे लोग जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं, तो आप देखेंगे ये जो आजकल तरबूज आता है, तरबूज के ऊपर व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स होते हैं ऊपर के, उस पर देखा होगा आपने, वो व्हाइट पार्टिकल जो है वही जो बरसात के जो है पानी में होता है। बरसात के पानी में भी अगर आप बरसात में नहाते हैं तो उससे भी B12 जो है बहुत अच्छा इंप्रूव, अभी बरसात का टाइम आएगा तो बहुत लोग भीगने से जो है उससे जो है कोल्ड ना हो जाए वो डरते हैं, लेकिन अगर सेफ गार्ड लेते हुए बरसात के पानी में नहाते हैं तो आप बरसात के पानी जो होता है वो डिस्टिल वाटर होता है, वही डिस्टिल वाटर आपके तरबूज के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स होते हैं वो भी डिस्टिल वाटर होता है। तो जिनको हाइपरटेंशन की शिकायत है उससे इसको पोटाशियम बहुत अच्छा मिलेगा, पोटाशियम मिलेगा तो सोडियम कम हो जाएगा, आपका बीपी नीचे आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे 3 से 4 चम्मच अगर तरबूज के बीज की गिरी आपने जो है खानी शुरू कर दी तो आपका बीपी डाउन आना शुरू हो जाएगा। और उसी में पोटाशियम के साथ डिस्टिल वाटर मैंने बताया डिस्टिल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर का क्या काम है, वो बॉडी के अंदर यूरिनेटिंग जो है वो फास्ट कर देता है, यानी कि पेशाब की मात्रा को इंक्रीज कर देगा। और आपने देखा होगा बीपी में जो गोली देते हैं लेसिक्स और ये सारा जिसको जो है बहुत ज्यादा होता है बीपी होता है, तो उसको यूरिनेटिंग जो है वो जो है ज्यादा जो है यूरिन जो है उसको बढ़ाने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। तो हमें उन दवाइयों की जरूरत नहीं होगी, हमें इस गिरी के खाने से यूरिन भी साफ आना शुरू होगा और यूरिन के थ्रू बॉडी के टॉक्सिन्स बहुत सारे बाहर निकल जाएंगे। जी नेक्स्ट। Sir, next we have Shalini Gupta ma'am. Ma'am, please unmute Shalini Gupta ma'am. Good evening, sir. जी शालिनी जी। First of all, sir, thanks for your valuable words. Really, it's very valuable for us. I want to know, sir, does gender and age affect immunity? एज डेफिनेटली जो है इफेक्ट जो है एज फैक्टर तो है। अभी भी गवर्नमेंट ने जो है अभी इतना लॉकडाउन फ्री किया, लेकिन जो है 65 एंड अबाव को जो है अभी भी जो है उन्होंने लॉकडाउन में कहा है, और छोटे बच्चे को भी जो है अभी लॉकडाउन में कहा है। तो अगर एज इफेक्ट नहीं होता तो वो इस पे लॉकडाउन में क्यों स्ट्रिक्ट जो है अभी रेस्ट्रिक्शन तो मेंटेन करते। तो डेफिनेटली एज का फैक्टर होता है, बट सो फार एज कंसर्न जो है इम्यून में जेंडर का बहुत बड़ा कोई भी रोल नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर जो है कोई लेडीज में जो है लंबे टाइम से बीमार हैं तो वो अगर ये कहे कि मेरा जेंट्स से जो है इम्यून जो है वीक है, वो जेंट्स की वजह से इम्यून, जेंडर की वजह से इम्यून वीक नहीं है, वो उसकी डिसीज के कारण, वो डिसीज जो है अगर जेंट्स में भी है तो उसका भी जो है इम्यून कमजोर होता है। तो उसमें जहां तक जेंडर की कोई बात है उसमें नहीं होता, मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि रेगुलरिटी और सारे काम का जो है एक रूटीन उनका जो है उठने का और वो सारा मेंटेन फीमेल्स में ज्यादा होता है, तो उनको जो है होता है। लेकिन आफ्टर ए पीरियड, दैट इज जो उनको जो है जिस वक्त उनकी मीनोपोज की जब जो है एज आती है तो वहां कंपैरेटिवली उनका इम्यून थोड़ा सा 4 से 5 साल के लिए वीक हो जाता है, उनमें फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही मीनोपोज होगा फैट बढ़ेगा, और जो एस्ट्रोजन एक हार्मोन जो है वो उनकी मंथली साइकिल में निकलता है,
तो वो बंद होने के कारण एस्ट्रोजन का निकलना भी बंद हो जाएगा। उससे जो उसके जॉइंट्स जो हेल्दी रहते थे, वो एस्ट्रोजन नहीं मिलने से 45 आफ्टर द एज ऑफ, उन्होंने एवरेज 45 जो हम मेनोपॉज एक मानते हैं, जो कि इट मे बी 50 और मोर देन 50, बट इन जनरल एवरेज जो है दैट इज 45 जो है। तो उस एज में अगर आप जो है देखते हैं कि वो आने के 4 से 5 साल तक इरिटेशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ जो है इम्यून, साथ में इंडाइजेशन और उसकी डेफिशिएंसी विटामिन की, वो उस स्टेज में आती है। तो उस एज में वी कैन कंपेयर एंड जो है वी कैन से जो है कि उस वक्त उनका इम्यून इन कंपैरिजन जो है मेल जो है वो कमजोर होता है। Thank you, sir. Now, ma'am, please unmute Amit, sir. Amit History, he will be asking his question. जी अमित जी बोलिए। Good evening, sir. My question is, can the person having good immunity will not get corona? Definitely, he जो है suffers from corona, but without any medicine जो है within a day or two जो है वो एकदम थकान महसूस करेंगे, बॉडी एक्ट महसूस करेंगे, समटाइम्स जो है वो थोड़ा जो है हल्का फुल्का जो है गले में खराश और वो होगा, लेकिन 3-4 दिन में वो अपने आप में विदाउट एनी मेडिकेशन और आइसोलेशन वो दूर हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यून उसको वायरस को डेवलप नहीं होने देता और वो वहीं पे उसको जो है कमजोर करके खत्म कर देता है। Thank you, sir. No, ma'am, please unmute Pushpalata, ma'am. Pushpalata Dhingra, ma'am. Yes, good evening, sir. Very good evening. Sir, my question is कि people who are suffering from citric allergy, can they consume vitamin C tablets? Suffering from? Or is it safe to? Hello? Yes, ma'am. वो voice जो है इसमें इको कर रही है। हाँ। Is people who are suffering from citric allergy, can they consume vitamin C tablets, or is it safe to consume it? देखिए मैडम, इसमें जो है जहां तक एलर्जी का क्वेश्चन है, एलर्जी हम लोगों के यहाँ अराउंड 70% केसेस जो है वो क्योर हो जाती हैं। तो हम लोग जो है उसको बहुत ज्यादा जो है वो नहीं मानते हैं। एलर्जी में डिपेंड करता है वो एलर्जी किस किस से है। एक डस्ट एलर्जी है, डस्ट एलर्जी में आप सिट्रस ले ले कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डस्ट से एलर्जी है उसको। तो जो जितने एलर्जिक पर्सन्स हैं उनको जितनी पेट से जो है, आपके वुलन कारपेट से और डस्ट से, आपके बेड पे अगर जो है आपने बेड शीट जो है रोजाना चेंज नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, तो उस पर जो है ना, वहां पे जो है अगर वो इफेक्टेड है तो उसमें जो है आपकी एलर्जी खाने पीने से अगर एलर्जी है, तो हम लोगों के यहाँ एक निर्गुंडी सौरस है जो सब जगह मिल जाता है। तो आप अगर कुछ दिन जो है निर्गुंडी सौरस लेंगे, तो अब आपका जो बेसिक क्वेश्चन था जो जानना चाह रहे थे कि एलर्जी में सिट्रस, हम लोग जो है गला खराब होता है तब भी जो है लेमन जूस जो है ना उसको यूज कराते हैं उसमें जो है, लेकिन उसके साथ एंटीबायोटिक जो है वो टर्मरिक और जो है उसके साथ में हनी के साथ में अगर वो है तो वो गले में किसी प्रकार की भी एलर्जी या उससे होने वाले इफेक्ट को कभी भी इफेक्ट नहीं होने देगा। और विटामिन सी जो है आपके इसके अंदर है, अनानास के अंदर। अनानास अगर आपने कच्चा ले लिया तो वो एलर्जी बढ़ा देगा। अनानास अगर बिल्कुल रेड होने के बाद में आप खा रहे हैं तो वो एलर्जी को ठीक भी करेगा। वो एक अपने आप में रेमेडी भी है उसकी, और आपके जो है उसका जो है मेडिसिन का काम भी करेगा। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह जो है वो विटामिन सी एलर्जी जो है, मैंने बताया विटामिन सी तो जो है आपकी येलो जो शिमला मिर्च आती है, रेड जो शिमला मिर्च आती है, वो सारा विटामिन सी होता है। तो उसमें जो है एलर्जी का कोई जो है सिट्रस जो है जरूरी थोड़ा ही कि सिट्रस लें, विटामिन सी तो उसमें भी है। विटामिन सी जो है दूसरी जो है
आपकी जो है कितनी आइटम है जो इसमें हरी मिर्च में भी है, तो ये विटामिन सी पपीता में भी है, विटामिन सी खुमानी में भी है। तो आप जो है ये सारे जो है ले सकते हैं। विटामिन सी जो है आप जो है ये क्यों सोच रहे हैं कि हमें जो है उसको जो है जो बहुत ज्यादा सोर या उस तरह के उसमें लेना है, आप विटामिन सी इनसे लें। और उसमें भी अगर आप जो है विटामिन सी लेने के बाद में कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जैसे मैंने बताया, स्टीम इनहेलेशन जो है, गर्मी है बहुत लोगों को स्टीम या स्किन जो है इतनी सॉफ्ट होती है कि वो स्टीम लेते वक्त उनको जो है चेहरे पे जलन होती है, कुछ होता है, तो उनके लिए एक जो है तरीका रहता है कि वो जब भी स्टीम लें तो उसको 30 to 40 सेकंड जो है वो फेस को स्टीम पे जो है लेंगे और एक ठंडा टावल जो है वो पास में रखेंगे। कोई भी प्लेट में पानी रख करके उसमें टावल जो है फोल्ड करके रखें और उस पानी में जिस तरह से स्पंज रखते हैं हम, ऐसे जो है टावल रखें, एक बार स्टीम लें और टावल से फेस वॉश करते रहें। और ये फेस का जो है आप अपने बच्चे में भी, अगर वो जल्दी जो है पढ़ाई में जो है स्टडी करते वक्त जल्दी जल्दी उठ करके भागता है, कंसंट्रेट प्रॉपर नहीं कर पाता है, या स्ट्रेसफुल जो है उसका जो है ना टेंडेंसी है, तो आप ये तब भी करा सकते हैं बच्चे को हर आधे आधे घंटे आप गीले टावल से 2-3 बार फेस वॉश कर देंगे तो बच्चा कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएगा, कंसंट्रेशन उसकी बेटर होगी। और वही आप जो है फेस पे अगर ठंडे टावल स्टीम के साथ में जो है आप साथ साथ जो है उसको वॉश करते रहेंगे तो आपको स्किन पे उसका कोई जो है साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। Thank you, sir. Now, Akanksha ma'am, she wants to ask you something. She has a special query. Ma'am, please unmute Akanksha ma'am. Good evening, sir. Sir, I had a query that as nowadays diabetes is very common. It's a very common disease, and we all know that diabetics have low immunity. So how can people specifically suffering from diabetes work on their immunity? Do they need, मतलब यही normal चीजें सब follow करें या उनके लिए सर और भी कुछ चीजें हैं जो उन्हें follow करनी चाहिए अपनी immunity के लिए? आकांक्षा जी, very good question and I am waiting for the question जो है, because जो है now हर 5th person is diabetic and in future it is estimated that every family has a diabetic person. तो इसमें आप देखेंगे कि ये सारा जितना भी डिसीज है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज हैं। तो इनके अंदर आप जितना देखें, मैंने अक्सर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं अरे सर ये रेंज इसकी 72 जो है 110 फास्टिंग है और अभी तो मेरी 120 आई है, थोड़ा सा ही ऊपर है। तो ये लोग जो है जो बॉर्डर लाइन पे आने के बाद अपने आप को उस स्टेज में ऑलमोस्ट आई कैन से कि मोर देन 95% केसेस हैव बीन totally sold if they are serious to their do's and don't and diet। वो अगर उसको जो है कर लेते हैं, ये भी आप देखेंगे कि इसमें भी पैनक्रियाज जो है वो सारा का सारा सीक्रेशंस, अगर आपका सिटिंग जॉब है, अभी आपने देखा कि बहुत लोग जो है इसको जो है ओबेसिटी से मैक्सिमम जो है इसको लिंक करके रखते थे कि ओबेसिटी है तो जो है बहुत ज्यादा जो है वो रहेगा। लेकिन ओबेसिटी में आपने देखा बहुत लोग ओबीज हैं लेकिन बिल्कुल डायबिटीज नहीं है, और बहुत लोग जो सिंगल जो है स्ट्रक्चर के जो है हैं वो जो है भयंकर डायबिटिक हैं। फिर आया कि ये वो लोग हैं जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कुछ करते ही नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और ओबेसिटी है, उनको होता है। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पास आते हैं जो लेबरर जो है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, सारे दिन धूप में रहते हैं, जो फार्मर्स दिन भर हल चलाते हैं, जो है इतना मेहनत करते हैं, जो कुली जो है दिन भर बोझाट होते हैं, उन सब में भी डायबिटीज है। तो ये जो है हमारा उनका कारण ये होता है कि वो लोग जो है नशा इतना करते हैं कि वो अपने लीवर को डैमेज करते हैं। लीवर जहां भी डैमेज होगा उसका इफेक्ट पैनक्रियाज और उसके डाइजेशन पे, वो शुगर को जो ग्लूकोज में बदलना है उसके लिए इंसुलिन जो है वो देगी हमारी जो है, लेकिन पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं देगी तो भी उसको जो है वो खाने को डाइजेस्ट करके उसमें से ग्लूकोज को अलग करने का काम जो उसने करना है लीवर ने, अगर वो ग्लूकोज अलग नहीं करेगा तो इंसुलिन होगी तब भी वो जो है
उसको शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी और आपको उसकी वीकनेस हमेशा बनी रहेगी। तो इसमें थोड़ा डाइट मैनेजमेंट में जो है मैं और थोड़ा इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट ये ऐसा है कि और भी क्वेश्चन फिर ना करें, तो मैं इसको जो है पूरा कंप्लीट यही कर दे रहा हूं। और इसके अंदर जो है ये देखें कि आप एक बार में कोशिश करें, जैसे बहुत लोग इसके अंदर जो है क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि शुगर तो आपके जो है हर जो है अनाज में भी है, आपके फल सब्जियों में भी शुगर है, सब जगह शुगर है, लेकिन उसमें जो है आपको मैनेज करना है। शुगर तो आपको थोड़ी सी जो है वो कुछ भी खाएंगे तो जाएगी, हर चीज में शुगर है, लेकिन हमें उसकी जो है यूनिट को डिसाइड करके रखना। अगर हमें किसी वक्त जो है व्हीट से जो है चावल में आपके शुगर ज्यादा है, उसमें स्टार्च ज्यादा है, जिस भी चीज में स्टार्च होता है, और जो भी जो है स्टार्च जो है आपके जो है कार्बोहाइड्रेट बढ़ाता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है जहां भी बढ़ेगा वहीं पे शुगर जो है वो बढ़ जाएगी। स्टार्च जहां भी ज्यादा लेंगे वहीं पे शुगर बढ़ जाएगी। स्टार्च दही में है उससे भी बढ़ती है, स्टार्च जो है आपके जो है गेहूं में है उसमें भी बढ़ती है, राइस में है उसमें भी बढ़ती है, और सबसे ज्यादा जो हम ब्रेड को ये मानते हैं तो उसके अंदर भी वो स्टार्च होता है। और इवन जो पराठा खाते हैं उनमें आपने देखा होगा ब्रेड या पराठा खाने के बाद आप पानी ज्यादा लेते हैं और थोड़ी देर बाद ही आपको जो है प्यास लगनी शुरू होती है और उसमें वो कार्बोहाइड्रेट बढ़ना शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट जहां बढ़ेगा वहीं पे आपको वो सबसे ज्यादा, तो इसलिए हम लोग जो सबसे पहला जो सजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि आप जो भी ग्रेन्स यूज करते हैं, इधर वो चने का आटा लेते हैं, गेहूं का लेते हैं, जौ का लेते हैं, कोई भी लेते हैं, तो सबसे पहले आप उसको कोशिश करें कि वो आटा डायरेक्ट ना पिसवाएं। उसको जैसे सत्तू बनता है, बाहर में चने को भून करके जो है चना भुना हुआ आता है, उसको पीस करके जो है चने का सत्तू बनाते हैं, जौ को भून करके जौ का सत्तू बनाते हैं, तो आप गेहूं को भी भून करके तब आटा बनवाएं, बहुत क्रिस्पी होगा। और उसके साथ में आप कम से कम 30 से 35 पत्ते इसके जो है आप कड़ी पत्ते के पत्ते जो है पीस करके उसमें आटा गूंद करके अपनी रोटी खाएं। आप देखेंगे मैं 3 चीजें बता रहा हूं, 3 चीजें आप 10 दिन करके, और जो आप टेबलेट ले रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना चेंज करें, बाकी वही रखें, और आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल डाउन आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट वन कि मैंने बताया आटा चेंज कर दें, कार्बो इसकी स्टार्च की और वो सब चीजें जो एक बार जो है स्टॉप कर दें। आपकी डाइट जो है जैसे 4 चपाती एक बार में लेते हैं, तो भले ही आप जो है आप अपनी डाइट 4 बार ले लें, लेकिन उसको डाइट को आधा कर दें। उससे पहले जैसे मैंने बताया था 300 to 400 ग्राम्स जो है आप अच्छे बड़े चुकंदर, खीरा, टमाटर, इनकी सलाद खाने से पहले जरूर खाएं। और प्राणायाम का आप 15-20 मिनट, आधा घंटा भी अभ्यास करें। साथ में थोड़ी देर के लिए शाम को गाय के घी की जो है एक पट्टी माथे के ऊपर रखें, और उसी वक्त एक पट्टी जो है या तो मुल्तानी मिट्टी की या इसी घी की पैनक्रियाज के एरिया में, जो यहाँ पे जहां पैनक्रियाज होती है ये एकदम सेंटर के उसमें आप आएंगे, रिब्स के नीचे जो है लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा जाकर के आप पैनक्रियाज के ऊपर रख के आधा घंटा अगर आप घर में आकर के ड्यूटी आवर्स के बाद में आकर लेट करके ऊपर लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आप अगर आटा भी नहीं करें, दूसरा भी कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं करें, सिर्फ घी की पट्टी से पैनक्रियाज और फोरहेड पे वो पट्टी लगा के आधा घंटा आप कर लें। जिस वक्त पट्टी लगाएं उस वक्त शुगर टेस्ट कर लेना, और आधा घंटा पट्टी हटाने के बाद शुगर टेस्ट करेंगे, उसमें भी आपको इमीडिएट चेंजेस नजर आएंगे। ये आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो आप टाइम टेबल बना लें, डाइट मैनेजमेंट करें, उसके अंदर रो डाइट बढ़ा दें, और आप जो है उसमें अंकुरित के साथ में सलाद का सेवन, जिसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स मेन जो हैं कि चुकंदर, टमाटर, खीरा और लौकी जूस वगैरह भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर ये लेंगे
तो डेफिनेटली आप इसमें चेंज आना शुरू होगा। जब आप में चेंज आता है तो आप आगे बात करेंगे तो हम उसके जो है सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और वो अलग अलग स्टेज के वो जो है करवाते हैं। और बहुत लोग हैं जिन लोगों ने दवा जो है छोड़े हुए भी कई वर्ष हो गए हैं। देयर आर 4-5 years एंड जो है इवन दे आर टेकिंग सम स्वीट्स आल्सो जो है, बट दे आर जो है नॉर्मल जो है। जी मैम, एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, बस एक दो क्वेश्चंस और। सुदर्शना भारद्वाज मैम है हमारे साथ। मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए उनको so that she can ask her question. जी भार्गव जी। Good evening, sir. Very good evening. Sir, I just wanted to know eating habits का आपने already बता दिया। Just I want to know कि हमारा जो blood group होता है उसका भी हमारे immune system से कोई relation है? बहुत ज्यादा हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग तो इम्यून जो है एक तो बाय बर्थ मिलता है, तो वो ऑलरेडी जो है क्योंकि ब्लड ग्रुप को चेंज कर ही नहीं सकते, इसलिए उस पे हम लोग जो है ये करके चले मेरा ब्लड ग्रुप तो ये है और इसमें जो इम्यून कमजोर है। अगर एक्सेप्टेबिलिटी मान लिया आपने तो आप जो है जितने वीकनेस ब्लड ग्रुप से नहीं होगी उससे ज्यादा आपको जो एक्सेप्टेबिलिटी से जो है एक नेगेटिविटी आ जाएगी, वो आपको डाउन कर देगी। तो आप फॉरगेट इट के उसमें जो है ब्लड ग्रुप से कोई जो है नहीं होगा। इम्यून आपका खान पान से होगा। आजकल इम्यून के लिए पेपर में उसमें सब में आपने पढ़ लिया, लेकिन मैं क्योंकि इसको जो है अभी क्वेश्चंस उस तरह के नहीं आए हैं, मुझे लगता था या तो सब लोगों को जो है उसके बारे में जानकारी मिल गई है। आयुष ने 4 चीजें बताई हैं जो हम डेली रूटीन में मॉर्निंग टी जो लेते हैं उस टी को उसके साथ में ले लें, और बच्चों को पहले हम जो है आधा गिलास पानी में वो सब चीजें बॉईल कर दें और उसको छान करके फिर उस पानी में दूध डाल करके बॉईल करके दे दें। तो 4 चीजें आयुष के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड हैं, जिसके अंदर 1:2:4 4 चीजें 1, 2, 2, 4 1:2:4 क्या है वो 4 चीजें? यानी कि अगर 1 चम्मच आपने काली मिर्च ली है तो 2 चम्मच आप जो है दालचीनी पाउडर लेंगे और उसके अंदर जो है आप जो है सौंठ पाउडर 2 चम्मच डालेंगे और 4th वन 4 चम्मच तुलसी के पत्ते जो है या तो सुखा के पाउडर बाजार में मिल जाता है वो ले लें, नहीं तो ताजा पत्ते भी लेके डाल सकते हैं। ये 4 चीजें आप अगर सवेरे बॉईल कर लेते हैं, इसमें से ये नहीं कि ये इतनी मात्रा एक बार में लेनी है, ये रेशो है। ये रेशो से आप तैयार करके अगर रख लेते हैं तो उसमें से सिर्फ 1 से 1.5 ग्राम से के 1/4 टीस्पून आप डाल करके बॉईल करें, और जिनको शुगर नहीं है वो 5 से 6 पीस मुनक्का के डाल दें। तो मुनक्का आपके डाइजेशन का काम करेगी। आपका जो मुनक्का का जो है रोल जो है गले में म्यूकस को बिल्कुल साफ करना है, वही दालचीनी का है। दालचीनी जिनको जो है कोलेस्ट्रॉल और वो है वो खून को भी पतला करती है। तो ये सारे इसमें पूरी बॉडी में जो जनरल बीमारी होती है उन सबको मेकअप करने के लिए एक चाय एवरेज लेते रहें। उसमें दूध बाद में डालना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, दूध नहीं डालना चाहे नींबू डाल सकते हैं, और उसमें जो है हनी भी ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों को पहले से गला खराब रहता है वो इसमें टर्मरिक जो है वो उसी 1 डोज में 1.5 ग्राम की डोज में वो 2 ग्राम हल्दी भी डाल करके बॉईल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को इन दिनों, क्योंकि मैंने बताया जो सबसे ज्यादा अभी केस आ रहे हैं मेरे पास जो है 10 दिन से जो केसेस की जो है भरमार हुई है वो है फीवर की। तो फीवर में आप जो है 5 पत्ते लेंगे अमरूद के, 5 पत्ते उसमें जो है ले लेंगे जो है पीपल के, और उसके अंदर आटे का चोकर, नींबू के 6-7 बीज, काली मिर्च, ये सब लेके थोड़ा अदरक और लौंग डाल देंगे, हल्दी और अजवाइन डाल देंगे। ये सिर्फ 1-1 चौथाई चम्मच की मात्रा डालेंगे 1.5 गिलास में बॉईल करके, और ये गरम गरम जो है चाय की तरह आप पी करके पंखा थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बंद कर दें। वो गरम पीने से जो आपको एकदम स्वेटिंग होगी, बॉडी टेम्परेचर एकदम हाई होगा, तो एकदम ठंडे तौलिए से, गीले तौलिए से पूरे बदन को रबिंग करते हुए पोंछ लेंगे। और रबिंग करते हुए जब पोंछ लेंगे तो उस वक्त जो है आप एकदम देखेंगे कि आपको
इमीडिएट स्वेटिंग हो जाएगी। यानी कि स्वेटिंग मींस बॉडी में जो टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ था वो हीट आपको स्वेटिंग के थ्रू बाहर हो जाएगी और विद इन 10 मिनट आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। फिर भी अगर जो है लगता है तो आप कुकुम्बर जो खीरा है उसको लेकर के आप वो करें। और जैसे मैंने बच्चों के लिए उसमें बताया था तो उस वक्त में उसको बताया था डाइट में कि वो जो है उसको जरूर लें, कोकोनट जो है ना उसको जो है ग्राइंड करके और उसका बुरादा जो है बच्चों को जरूर खिलाएं। वो भले ही मिश्री के साथ दें या दूध के साथ में दे दें। तो वो बुरादे से जो बच्चों को जो है एकदम सवेरे देखते हैं यहाँ निशान आता है लार का जो है सफेद सफेद निशान, या बिस्तर उनका जो है तकिया जो है गीला हो जाता है। तो जिन बच्चों को वर्म्स होते हैं उनको ये लार आती है, तो उनको अगर आपने वो खिलाया तो उनके वर्म्स पे भी उसका इफेक्ट होता है। तो आप भी अपने इस तरह के जो है फाइबर भी बढ़ जाएगा, पेट भी जल्दी साफ होगा और इसको जो है लेने से जो है, क्योंकि हमेशा इन दिनों में जब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग बाहर हुई है और स्वेटिंग में आपने देखा होगा कि बॉडी का जितना भी जो है एक्स्ट्रा जो है वो मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है। तो वो आपने देखा होगा पसीना जो सूखने के बाद हम मल देते हैं, बॉडी को जरा सा ही मसलते हैं तो काली काली बत्तियां सी बन के निकलती हैं, वही गंध हमारी पसीने से निकलती है। अगर हम एकदम पसीने से बाहर से आए और एकदम जो एसी में घुस गए तो हमारे जो रूम कोप हैं, जो छिद्र हैं इसके पसीने के, उनमें जो गंध बाहर निकलने के लिए आई हुई थी वो कोल्ड जो है टेम्परेचर में एकदम लो टेम्परेचर में जाने के कारण वो वहीं पे सिकुड़ जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने से वो जो गंध भरी थी वो अंदर ही रह जाती है रोम छिद्र में और वहीं पे चिपक करके हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। और बंद होने के बाद बॉडी का टेम्परेचर जो बाहर हीट को जो है निकालने का काम जो होता है वो नहीं कर पाएगा, तो तब जाके टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर दो ही कंडीशन में आएगा, या तो आपका पेट साफ नहीं होगा, पेट से गर्मी नहीं निकलेगी, या आपको पेशाब कम हो गया यानी कि पानी कम ले रहे हैं, या फिर तीसरा आपने स्वेटिंग जो है वो एसी वगैरह के कारण उसको स्टॉप कर दिया है। तो तब आपकी बॉडी में गर्मी के कारण हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ के टेम्परेचर बढ़ेगा, बुखार आएगा। और यही 3 तरीके हैं, हम इनको जो है अगर वो करेंगे तो जैसे ही आपने गर्म लिया, गर्म लेकर के अंदर से रोम कूप जो है वो उसके वो हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। और डायलेट होने के बाद में बाहर से जैसे ही आप कोल्ड जो है टाउल का करेंगे तो वो रोम कूप और ज्यादा ठंडे होने पानी के कारण और ज्यादा सिकुड़ेंगे। सिकुड़ने से वो जो उसके अंदर मल भरा हुआ है वो पिचक करके पीछे की तरफ जाएगा और फिर वो जो है झटके से सब बाहर आ जाएगा और पूरी हीट बॉडी से बाहर निकल जाएगी और 10 मिनट बाद टेम्परेचर आपका डाउन हो जाएगा। तो आजकल के उसमें जैसे ही बुखार आए आप तुरंत इस तरह का एक काढ़ा ले लें और ये बना करके आप 2-3 बार प्रयोग कर लें। उसके साथ में गला खराब है तो गले खराब के लिए मैंने वो काढ़ा बताया, आप सुरे लें। बच्चों को जो है उसको दूध में उसके अंदर जो है दूसरे बूस्टर वगैरह कोई भी जो है डालना चाहें तो उनको रंग का कलर का वो नहीं पता लगेगा, लेकिन टेस्ट इटसेल्फ जो है बहुत अच्छा है। हम लोगों ने जितने भी जानकार हैं सब में जो है डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया और वह सब हुआ, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। और यहाँ तक कि आपने राजस्थान और अभी पेपरों में उनके कुछ कटिंग व्हाट्सएप पे भी जो है सर्कुलेट हो रही है और आयुष ने भी मान करके उसको रिकॉग्निशन दे करके अभी उसको पेशेंट पे भी ट्राई किया जा रहा है, जो इसमें जो है जहां भी उनको रखते हैं उसमें यही काढ़े के द्वारा जो है उनको कर रहे हैं और उसी से रिकवरी आप देख रहे हैं। रिकवरी रेट रोजाना जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लोगों में गिलोय का भी और इसका, क्योंकि गिलोय में मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक सब चीजें इसके प्रूव हुई हैं। ये जो है नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ने भी उसको जो है रिसर्च करके उसको जो है दिया कि इसके अंदर सारी चीजें। तो आप जो है गिलोय का थोड़ा टुकड़ा डाल करके वो बॉइल कर लेते हैं, ले लेते हैं। और इसमें तुलसी में जो हम लोग पहले से ही मानते थे लेकिन अभी ये प्रूव हो गया, रिसर्च आ गई है इसके अंदर। तो आप देखेंगे ये इम्यून बूस्ट भी करेंगे। इसी के अंदर मीठे की जगह आप जो है बीच में जो है एक आध खजूर साथ में खा लेते हैं, उसके साथ में आप जो है दूसरे जो है जो इसके रहते हैं अश्वगंधार, मैंने ये बताया गिलोय पाउडर वगैरह मिक्स करके वो ले लेंगे। या शतावरी एक आता है जो बहुत ज्यादा लेडीज के केस में तो बहुत ज्यादा उनके इम्यून को बूस्ट करता है। जिन लोगों को जो है आज बहुत ज्यादा अगर पहले से ही हीमोग्लोबिन आयरन कम होता है तो वो जो है इनको लेंगे
तो इससे उनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, लो बीपी है वो भी ठीक हो जाएगा और उनके शरीर में जो आलस्य है वो भी दूर हो जाएगा। यस मैडम, जो है नाउ इट्स ओवर, मीटिंग इज अबाउट टू नहीं, अब आकांक्षा मैम विल कन्वे वोट ऑफ थैंक्स। ओके, सो अगर किसी को है तो बाद में जो है कभी भी जो है नंबर जो है वो आप लोग जो है जिसको ठीक समझे कि वो जेन्युइन जो है ना, अगर उसका क्वेश्चन है तो आप दे देंगे, वो कभी भी पर्सनल है तो वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि नाउ इट्स जो है इट्स ए लॉन्ग टाइम जो है, तो यस यस एनी अदर जो है 1 or 2 क्वेश्चंस जो है यू फील के जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, देन यू कैन पुट इट, अदरवाइज जो है sir, actually the meeting's time was 2 hours and I think we just have 2 minutes left, so उसके अंदर I would like to thank you sir कि आपने सब लोगों की इतनी क्वेरीज एड्रेस करी और इतना अच्छा आपने एड्रेस दिया जो चीजें आजकल के टाइम पे इतनी रेलेवेंट हैं। एंड सी हाउ टाइम्स चेंज, सब लोग पहले एलोपैथी पे चले गए थे, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी से, एंड नाउ पीपल आर कमिंग बैक। सो वंडरफुल। हमारे पास तो पहले भी जो है मैडम, पहले भी जो है ना, मेरी इतनी लंबी प्रैक्टिस में जो है मेरे पास 100 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें हम लोगों के पास जो कॉमन डिसीज हैं जो एलोपैथी में उनका कुछ है ही नहीं, शुगर का और ये जितना भी जो है वो कॉमन डिसीज के हम लोगों के पास जो इतने पेशेंट होते हैं, हमें दूसरी छोटी मोटी डिसीज को जो है बहुत ज्यादा टेकअप करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जी सर। सो सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर वर्ड्स ऑफ विजडम, एंड आपने बहुत सब चीजों के बहुत ही आसान और ऐसी चीजें जो घर में आसानी से मिलती हैं या अरेंज की जा सकती हैं उस तरीके के सर आपने रेमेडीज बताई। I am sure that all the viewers will benefit from this, and I would like to thank the management and the International Naturopathy Organization. From my side also. From my side also. Yes, thank you, sir. Thank you very much, sir. I want to thank all of you also who have made this program success. Absolutely, sir. I would like to thank the participants also and the organizing team. Right. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you everybody for being. Thank you, Dr. Sharma. Thank you very much. Sharma ji, thank you very much. Thank you ji. Thank you. Thank you, sir. Okay.